ہمارے یہاں سیکس ایجوکیشن کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. نہیں, عمران خان کو نظر لگی تو 804 بنا بیٹھا ہے. جدوں ہالی جی لینا میرا نا میں تھا مر جانی ہاں, تو محسوس ہوتا تھا وہ تھا مر جاتی تھی. وجود خیال کا زوال ہے. اسکرپٹ کی مجھے لذت مل رہی ہوتی ہے نا, اسے میں ٹھہر کے سکون سے پڑھ کے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, یہ ایک غلط جملہ ہے. اور جو اسکرپٹ میں بولوں گا یہ رہتی دنیا تک رہے گا, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر شخص تکلیف میں ہے, ہر شخص مشکل میں ہے. اب جب یہ کہا جائے گا نا پگلا گئے ہیں آپ کے چومے ہوئے درخت, تو ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نہ سیکھنے کا ہے. ہمیں باجا لے کے دے دیں کہ بیٹے تم شور مچاؤ گے, انہوں نے کہا میں تب بجاؤں گا جب سب سو رہے ہوں. تلفظ, تحت اللفظ اور اس کی فری آف کاسٹ پریکٹس بھی کرواؤں. تو دوسری مختلف جو سائیکولوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کام کر رہے ہیں وہ میڈیسنس پر لگا دیتے ہیں یا بار بار سیشنز پر لگا دیتے ہیں. نام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. آدھی بیوہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بھائی ظلم کرتا رہا 8 سال تک اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. شوہر بھی دماغ ان کا خراب کر دیا جاتا ہے کہ تم مجازی خدا. السلام علیکم خواتین و افراد, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنک ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوں, تھوڑا سا پریشان بھی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے سامنے جو گیسٹ بیٹھے ہیں میں بڑی دیر سے ان کو فالو کرتا ہوں, اور ان کی آواز کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے, لٹرلی سر چڑھ کے بولتا ہے. اس وجہ سے کہ جب آپ ان کی طرف کیمرے کا رخ ہوگا, آپ ان کی پرسنالٹی دیکھیں گے تو آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بھاری بھرکم آواز جو ہے وہ اس شخص کی ہے, جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل کا مالک, اور بڑی پیاری ڈسکشن کرتے ہیں, بڑی جامع ڈسکشن کرتے ہیں. میں ان کو پاکستان میں 2 ہی وائس اوور آرٹسٹ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں, اور ان میں سے ایک یہ ہیں. تو کافی دیر سے میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک سیشن کیا جائے, اور خاص طور پہ مجھ جیسے نالائق لوگ جن کی آواز اتنی پیاری نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنی آواز کو امپروو کر سکتے ہیں, وہ کیسے اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, تو آپ کی آواز کے اندر دم ہونا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وزن آ جاتا ہے اگر آپ کی آواز میں بیس آ جائے. تو ان ساری چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے, اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے ایک اور بھی پہلو ہے کہ یہ ریلیشن شپ کے اوپر, جو کہ آج کل کے ینگ بچوں کے لیے بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ اس کی کاؤنسلنگ کے سیشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو آئی تھنک سو کوئی چینل ایسا نہیں ہے, پی ٹی وی سے لے کے سما سے لے کے دنیا جتنے بڑے چینل ہیں ان سب کے اوپر ایز اے اینکر بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. میرے ساتھ جناب آج موجود ہیں صفدر علی, جو کہ بڑے پیارے دوست بھی ہیں اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم صفدر بھائی. السلام, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی تعریف کر دی میرے کندھوں پر بوجھ آ گیا. سر تعریف نہیں کی, لٹرلی جو میں نے فیل کیا وہ میں نے اس کے بارے میں بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے وہ جب بات کی نا تو میرے ذہن میں شعر گھوم رہا تھا, آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, واہ ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. کیا بات ہے. تو بات آواز کی ہو گئی ہے تو چلیں آواز دے کے دیکھ لیتے ہیں. میں بلکہ اس پوڈ کاسٹ کا جو نا آغاز میں بھول گیا, اب تو ہو گیا. میں چاہتا یہ تھا کہ میں صرف لپ سنگ کروں اور انٹرو آپ دیں, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا, لیکن وہ ہو گیا تو چلے کوئی بات ہو. ایکچوئل وائس اوور کا فلیور جو ہے نا میں لینا چاہ رہا تھا, لیکن چلیں آگے جا کے اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. صفدر بھائی, آپ سے ایک بڑا پیار اور محبت کا ریلیشن ہے, اور آپ ہمیشہ بڑی شفقت کرتے ہیں اور گائیڈ بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم اس ٹاپک کی طرف آئیں, تھوڑا سا اپنی انیشیل لائف کے بارے میں بتائیے گا. کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ اچھا, اگر تو بہت بیسک اگر آپ انٹروڈکشن جاننا چاہتے ہیں, یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے جس میں میں یہ ساری کی ساری باتیں سر پھر ضرور بتائیے, پھر تو لازمی بتائیے. اب میں ظاہر ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے ڈسکشن کر رہا تھا, مارننگ شوز میں کوشش کر کے نہیں جاتا. میں کہتا ہوں پہلے اپنے اندر کچھ ہو تاکہ دوسروں کو پھر دیا جائے. کیا جملہ ہے, کوشش کر کے نہیں جاتا, لوگ کوشش کر کے جاتے ہیں. نہیں, میں کوشش کر کے نہیں جاتا, کیونکہ ظاہر ہے دوست ہیں, بہت سارے دوست ہیں جو پروگرامس کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز این اینکر میں گزشتہ کوئی 7-8 سال سے کام کر رہا ہوں میڈیا میں. تو مارننگ شوز میں ٹاپکس بھی ظاہر ہے کہ یہی ہوتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جائے, وائس اوور سے کیسے کمایا جائے, یوٹیوب سے کیسے کمایا جائے, اور پھر اب ریلیشن شپ کاؤنسلنگ. تو ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی ڈسکشن ٹی وی پر بہت زیادہ ہوتی ہے, تو میں کوشش واقعتاً کر کے نہیں جاتا. آپ نے جو سوال کا پوچھا کہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں, ابتدائی زندگی کے بارے میں, میرے نا گاؤں کا نام ہے بھیم گڑھ. ہاں ٹھیک ہے. تحصیل منچن آباد اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر. بہاول نگر ڈسٹرکٹ ظاہر ہے کہ جانا جاتا ہے. تحصیل منچن آباد اتنا نہیں جانی جاتی, لیکن تحصیل منچن آباد اب جانی جاتی ہے, ٹھیک ہے.
मैं पला बड़ा वहीं, मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है वही टाट का स्कूल, ठीक है। बस टाट से बदल कर वो दूसरे आ चुके थे, यूरिया खाद वाले जो बैग होते थे उसे जो भी कहें, तोड़ा। ठीक है, तोड़ा, उस पर बैठते थे जब बाहर बैठते थे, और फिर बेंच भी थे, ऐसा नहीं कि इतने का गुजरा भी नहीं था मामला। फिर बिंसनाबाद में आ गए, प्राइवेट एजुकेशन, फिर मैट्रिक तक वहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बिंसनाबाद में। शुरू से डिबेट्स में मैं था, अच्छा। सोएम क्लास थी, मैं लफ्ज चूंकि सोच रहा था ना कि थर्ड बड़े अरसे बाद सुनाई है स्टैंडर्ड में है, सोएम क्लास में मैं था, दो। हाँ सोएम है, तो सोएम क्लास में था, तो नाना अबू ने स्पीच करवाई, उन्होंने तैयारी करवाई, तो उसके बाद फिर मैं नहीं रुका, वाह। फिर चहारम पंचम शशम हफ्तम हश्तम नहम दहम तक, फिर मैं दहम में मैंने डिबेट कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल लिया अपने बोर्ड में, तो फिर वो सिलसिला एक चलता रहा। बिंसनाबाद से लाहौर आ गए, सही। और लाहौर तो ये आने के किस बाद सन फिर में छा आए? गए, ये 2009 में, 2009 में, लॉन्ग जर्नी। हाँ जी, 2009 में मैं यहाँ पर आया, और 2009 में आने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर मेरा एडमिशन बैडमिंटन बेस पे हो रहा था, मैं बैडमिंटन भी खेलता ठीक है। था। बैडमिंटन का हम जो थे वो सिल्वर मेडल थे वहाँ से, बोर्ड से, सही। तो यहाँ पर आकर ट्रायल दिए तो मेरा एडमिशन हो रहा था, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर ये खेल की बुनियाद पर गया तो फिर ये खेलता रहेगा, सही। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में फिर मैंने वहाँ पर ICS में एडमिशन लिया, सिलसिला चलता रहा। इस दौरान ही में कुछ हिस्सा मैंने मेडिकल को भी टच किया, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज, मेरा ज़िंदगी का बेहतरीन अरसा, हम मेरी मुस्कुराहट से जान लीजिएगा कि क्यों बेहतरीन अरसा जो है ना वहाँ गुजरा, सही है। वहाँ गुजरा शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज डाल में। दीजिए रोशनी ताकि मुस्कुराहट लोगों तक भी पहुंचे। यानी मैं एक जुमला कह देता हूँ तो उससे आप अंदाजा ले, मैं अगर किसी की, मुझे ये कायनात सुराही थी जहाँ आँखें थीं, बवासलात का पहला निज़ाम आँखें थीं, क्या बात। मैंने अगर किसी से आंखों में बात करना सीखा था तो शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में सीखा था, सही, ठीक है। तो फिर वो सिलसिला चला, फिर हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया BCom ऑनर्स में, फिर वहाँ से क्विट किया तो ICS इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़, वहाँ से मास्टर्स किया, सही। और वहीं से फिर मेरा अभी रिसेंट मैंने फिर MPhil भी किया, और इस दौरान ही में मैंने 7 न्यूज़ से न्यूज़ एंकर के तौर पर स्टार्ट लिया, दुनिया न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर काम कर रहा था। उससे पहले उर्दू पॉइंट पर मैंने काम किया, उर्दू पॉइंट का जो पहली लाइव वीडियो थी वो मैंने की थी, अच्छा। जो फेसबुक ने लाइव का ऑप्शन दिया था, तो फौजिया भट्टी साहिबा थी उस वक्त हेड कर रही थी, और अली चौधरी साहब का ज़ाहिर है वो सेटअप है, तो फौजिया भट्टी, मैं उनको जितना खिराज तहसीन पेश करूं, मैं कहता हूं कि उनके नाम की शामें मनाई जानी चाहिए, इतनी ग्रेसफुल खातून। सही। तो उन्होंने कहा कि सदर करोगे, मैंने कहा हमारा तो काम ही है तो उन्होंने कहा जी कि लाइव करें, फिर लाइव किया, फिर वहाँ से सिलसिला चलने के लिए डेली पाकिस्तान के साथ काम किया। मुजीब शामी साहब के बेटे उस्मान शामी काम कर रहे हैं, उस्मान शामी साहब बहुत शफकत करने वाले हैं, उन्होंने कहा सदर जो करना है करो, काम करो, काम लिबर्टी मिल गई, तो काम किया, वॉइस ओवर वहाँ पर भी किए। एट दैट मोमेंट 16 मिलियन में जा रहा है कंटेंट, वीडियो जा रही, जबकि फॉर यू का ऑप्शन, वीडियोस का ऑप्शन फेसबुक पे नहीं था, 30 मिलियन में जा रहा है कंटेंट। तो मैं कहता था यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद समझ बूझ थी कि ये क्या हो की रे, क्या सारा इसमें पीछे, अच्छा समझ ये थी कि काम करना है, समझ ये थी कि बस इसके ऊपर कंटेंट डालना है, पढ़ना है और लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाना है, ठीक है। ये वायरल वाला नहीं कॉन्सेप्ट था। सही। और फिर 2016 में शायद यूट्यूब जब दोबारा पाकिस्तान में ऑन हुआ तो रज़ा खान और शहरियार खान, रज़ा मेरा हेले का फेलो था, मेरे से सीनियर था, और शहरियार उनके बड़े भाई, इन्होंने कहा यूट्यूब करते हैं, तो हमने एक चैनल बनाया, वो मोनेटाइज देर से हुआ, बहुत देर से हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलो दूसरा भी बना लेते हैं। फिर हमने मुड़ कर नहीं देखा, फिर 7 से 8 वीडियोस हमारी जो ट्रेंडिंग में होती थी यूट्यूब की। क्या बात। ये अब जो ट्रेंड चल रहे हैं, हम इनको तो हम समझते ही कुछ नहीं है ना, क्योंकि उस वक्त और पैसा भी कमाया हमने, जाहिर है, और फिर वॉइस ओवर बात किए, एक दिन में 4-4 यूट्यूब वीडियोस का कंटेंट लिख रहा होता था मैं, उसका वॉइस ओवर कर रहा होता था, उस पर काम कर रहा होता था, तो ये सारे का सारा सर्कल इस तरह से चलता रहा। सही। और फिर उसके बाद मीडिया तो एक, ये कौन सी स्टेज आपके करियर में ऐसी है जहाँ लगा कि हाँ अब जो है पता चल गया कि आवाज़ मेरी अच्छी है और इसमें निखार आना शुरू हो गया? क्योंकि देखें बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी आवाज़ तो बहुत बेस वाली होती है, खाली बेस होना लाजमी नहीं है, अल्फाज का चुनाव, उनकी अदायगी, और फिर आपके जो तलफ़ुज़ जैसे आपके ज़ुबान से अदा हो रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज का वैसे ढलना, ये सारी आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कब काम करना शुरू किया, या कौन सी ऐसी आप समझते हैं कि जो स्टेज थी जहाँ पे इसके ऊपर आपको मज़ा आना शुरू हुआ? मैं 2013 में रेडियो पाकिस्तान में सिलेक्ट हुआ। सही।
आरजे के तौर पर, इवनिंग ड्राइव टाइम शो था ठीक है। और वहाँ पर सेलेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आया, मैंने नहीं सीखा। 2015 में ICS इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पर शो कर रहा था। ओके। तो डॉक्टर सिमाफर बुखारी साहिबा हैं, शी इज़ लाइक माई मदर। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो जो कॉल है ना कि उस्ताद ज़मीन से आसमान पर ले, मुझे आसमान और आसमानों की बुलंदियों पर भी जो मेरा आसमान है जी जी जी, उस पर ले जाने वाली अगर कोई खातून है तो सिमाफर बुखारी हैं। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है बेटे, डॉक्यूमेंट्री की वॉइस ओवर किया करो। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्री दी, मैंने डॉक्यूमेंट्री की। उन्होंने मुझे रेडियो ड्रामा दिया, हमने रेडियो ड्रामा किया। वो रेडियो ड्रामा मुझे यूनिवर्सिटी का नाम तो याद नहीं है, तो वहाँ से उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। सही। अगले साल, यानी ये यूरोपियन कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपटीशन था। ठीक है। सेकेंड ईयर फिर हमने किया तो सेकेंड पोजीशन आ गई, यानी तो फिर वहाँ से मुझे बूस्ट मिला। उन्होंने कहा कि इस पर काम करना है। फिर एक शेर भी मेरे जहन में घूमता रहता था कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। क्या बात है। तो मैं फिर कोशिश करता था कि यार अच्छा बोला जाए, अच्छे अल्फाज का चुनाव किया जाए और शुस्तगी के साथ बात की जाए, बजाय इसके कि मतलब जो सब सिलसिला बेहंगम चल रहे हैं तो बेहंगम चलते चल रहे हैं जाएं, तो हाँ। तो फिर मुझे सबसे मुख्तलिफ और सबसे आसान जो रास्ता लगा यही लगा, सही। अच्छी उर्दू बोली जाए, अच्छी बात की जाए, तमीज़ तहजीब के दायरे में बात की जाए। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है मुझसे कि सर आप बहुत स्लो बोलते हैं, आपकी आवाज़ ठीक है लेकिन आप स्लो बात कर रहे हो। सही। तो मैं कहता हूँ समझ आ रही है, समझ आती है। कहते हैं हाँ बस आप ही की आती है। तो मैंने कहा फिर मसला क्या है, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहा। 2015 में मुझे यानी शनाख्त मिली दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। और मोहर तस्दीक जो शब्द की थी उसे माफर बुखारी साहिबा ने की। उन्होंने कहा कि सफदर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। हालांकि मेरी स्टूडेंट्स या मेरे स्टूडेंट्स जो FM में मुझसे सीख रहे होते थे, चूँकि मैं पुराना काम कर रहा, वो ऑन एयर पहले हो जाते थे। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी उनके लिए भी, मेरे लिए भी। सही। लेकिन जब मैं ऑन एयर हुआ तो फिर मेरा एक लंबा सिलसिला था। ये अल्लाह ताला की तरफ से सिलसिला समटाइम इम्तिहान भी होता है आपका, ठीक है। अल्लाह ताला भी आजमा रहा होता है कि बंदे में मैंने एक पेशेंस है इंटरव्यू या में नहीं एक है। बात कही थी, मैंने कहा कि मुझसे किसी ने ये सवाल इसी बात पर किया ना, आजमाने पर। मैंने कहा मेरा इस बात पर यकीन है कि मैं मिट्टी में हाथ डाल देता हूँ तब तक रखे रखता हूँ जब तक वो कुंदन नहीं बन जाता। क्या बात है। क्या बात और ये नहीं है कि हाथ डालता हूँ तो कुंदन बन जाता है, ये तो एक जुमला एक और ऐसी है, है हाँ, ना। मैं हाथ डाले रखता हूँ, कुदरत से दुआ करता रहता हूँ, वो कुंदन बना देती है, फिर मैं उसे अपनी झोली में डाल देता हूँ। बस ये काम है। क्या बात है। इसमें जब हम बात करते हैं अल्फाज की अदायगी की, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ पे हमारी जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू है उसके अंदर हमने पंजाबी और उर्दू के लहजे को काइंड ऑफ मिक्स कर दिया कहीं ना कहीं, और हम इतना कैजुअल हो जाते हैं, जिसको स्ट्रीट लैंग्वेज कहते हैं, इतना कैजुअल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हम उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं या कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग तो अपनी जो उनका बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल कोई सराइकी है या कोई पंजाब के किसी और इलाके, वो उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेता है। तो उसके सारी सिनेरियो के अंदर जब आपकी उर्दू सुनी जाती है, मैंने क्योंकि आपको नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बात करते हुए सुना है, आप इसी तरह ही बड़ा सोच समझ के अल्फाज की आपका जो चुनाव है, जो अदायगी है, वो ऐसे ही है जिस तरह भी आप कर रहे हैं। तो इसकी क्या प्रैक्टिस की आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या ये प्रैक्टिस की? मुझे ज़िया साहब बहुत अच्छे लगते थे और गुलजार साहब। हाँ, वो आप कहा करते हैं अक्सर, बिल्कुल उसके बारे में। संपूर्ण सिंह गुलजार और ज़िया मोहिउद्दीन, इन दो लोगों को मैंने सुना है, ठीक है, और मेरी समातों में ये घुल गए। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी नर्व इम्पल्स में सेव हो चुकी हैं इनकी आवाज़ें। मेरी ज़ुबान के जितने बोलने वाले हिस्से हैं, उन हिस्सों पे असर जो है वो संपूर्ण सिंह गुलजार का है और वो ज़िया साहब का। क्या बात है। क्या मैं सुनता था। आप ये देखिए कि मतलब कहते हैं कि किसी बड़े का जिक्र किया जाए तो आप खुद बड़े होने लग जाते हैं। तो गुलजार साहब ने गालिब के खतूत, मिर्ज़ा गालिब साहब के खतूत जो हैं वो पढ़े थे। सही। तो उनकी आवाज़ में ही वो रिकॉर्ड थे। तो मैं सुनते सुनते सो जाता था। मैंने उस वक्त की बात पढ़ी थी कि दिमाग चल रहा होता, दिमाग सीख रहा होता। अच्छा, ज़ाहिर है उतना तो नहीं था उस वक्त शऊर, लेकिन वो मैं सुनते सुनते सो जाता था। और सुबह जब मैं उठता था, अब देखिए मैंने ये बात की सुबह जब मैं उठता था, अब ये इसमें भी एक शाइस्तगी है। हालांकि सारे कहते हैं सुबह उठा या सुबह या कुछ ऐसा, तो वो सुबह बोलते थे। या और भी ऐसे कई अल्फाज, हो सकता है कि मेरी ज़ात के अंदर कोई गलतियाँ मौजूद हों, लेकिन इनसे मैंने सीखा, इन दो लोगों से, और इनको मैंने सुना। और सुनने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा तभी लिख सकते हैं, अच्छा सुनते हैं तो अच्छा तभी बोल सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि गालम गलोच का एक माहौल हो और आप उसमें अखलाकियात बोलने लग जाएं।
होना चाहते हुए भी आपकी वो आ जाता है, जुबान वो आ पे जाता है। लाजमी जिन दिनों में मैं अपने बेतकल्लुफ दोस्तों में बैठता हूँ मेरी जुबान खराब हो जाती है। ये तयशुदा बात है। सही, बिल्कुल ठीक है, सही, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि कोशिश करते हैं, एक परवरिश पेरेंट्स करते हैं, एक परवरिश हम खुद अपनी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे अपनी परवरिश करते हुए मैं बहुत औखा हुआ हूँ इस हवाले से, और बहुत टाइम लगा है। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, मैं सीखता चला गया और चीज़ें बेहतर होती चली गई। इस सारे सिनेरियो में दोस्तों का भी हाथ था, लेकिन कुदरत ने मुझ पर बड़ा करम किया रखा, मुझे मौके मिलते गए, वेरी गुड। मैं सीखता चला गया। मुझे यानी अच्छे शाइस्ता लोग मिले जिनके साथ मैं बात कर सकता था, जिनसे मैं डिस्कस कर सकता था, और फिर चीज़ें खुलती गई। तो इतने वर्ष गुजर गए इस सारी प्रैक्टिस को करते हुए, आज भी जब आप बात करते हैं या इवन कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या कोई भी किसी महफिल में बैठे होते हैं, तो क्या आज भी सोचते हैं अल्फाज अदा करने से पहले, या बस वो रवानगी में आ गई ये चीज़ें, बस ठीक है अब चलता है रूटीन का? अच्छा, मुझे मज़ा आता है सोचते हुए, सोच की लज्जत मुख्तलिफ है। सही। जॉन एलिया का एक जुमला है, कहा कि वजूद ख्याल का जवाल है। ख्याल अगर वजूद में आ जाएगा तो ख्याल की लज्जत तो ख़त्म हो गई ना। बिल्कुल ठीक है, तो सोच की लज्जत है। जो आपने बात की कि सोचते हैं, हाँ मैं सोचता हूँ। यानी एक जुमला है, फ़र्ज़ करें, बहुत मशहूर जुमला, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हाँ, जुमला तो एक ही है, इसको बोलने का अंदाज, इसकी शद, मद, जज्म, वक्फ, उसने इसकी बुनत तब्दील कर दी। बिल्कुल सही है, सही। तो जो स्क्रिप्ट होता है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं अगर वन गो में बोलना चाहूँ, स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँ, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ। बेतहाशा वीडियोस, बेतहाशा स्क्रिप्ट, वो तो प्रैक्टिस के बाद। लेकिन जिस स्क्रिप्ट की मुझे लज्जत मिल रही होती है ना, उसे मैं ठहर के सुकून से पढ़ के, तो फिर उसका मैं वॉइस ओवर पंजाबी में करता हूँ, कहते इस पर हैं बात पूरे करता चस्का लेंदे हूँ। होता है। चस लेते चस लेना। अच्छा, अभी जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है, अब जिस तरह मैंने भी आपको एक स्क्रिप्ट भेजा एक दफ़ा, तो आपने मेरा ख्याल है विद इन फ्यू सेकंड उसकी बड़ी अच्छी सी एक लय बना के आपने मुझे भेज दिया, और एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये इतनी क्विकली आपने भेजा। तो मैंने आपसे पूछा भी कि स्टूडियो में, आपने कहा नहीं भाई अपने आईफोन से ही भेजा है। तो हम आईफोन में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें वो हम्स और बहुत सारी जो है ना वो बीच में एक जो क्या उसको बोलते हैं, कपकपाहट होती है। हाँ जी। आपकी वो ऐसी स्मूथ थी कि लग रहा था कि जैसे भाई अभी स्टूडियो से रिकॉर्ड होके आई है। अच्छा, एक जुमला स्टार्ट चिश्ती साहब ने कहा था, मैं हवाले साथ साथ इसलिए देता जा रहा हूँ क्योंकि जिनकी बात है उनका नाम जी आना जी जरूरी बिल्कुल है। लाजमी है, और ये बहुत बड़ी बात है कि क्रेडिट देना। उन्होंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक गलत जुमला है। सही। मैं पहले तो इस बात पर लिखा, ये इतना अच्छा जुमला। उनका परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वेरी नाइस। अगर आप तबला बजाना चाह रहे हैं और गिटार बजाते रहें तो आपको तबला बजाना नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये कि प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके लिए आपको आगाज़ कर लेना चाहिए और उसी लय पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं ख़ास किस्म के वॉइस ओवर करता हूँ, ठीक है। यानी मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वॉइस ओवर करता हूँ, मैं अथॉरिटेटिव जो वॉइस होती है उसके वॉइस ओवर करता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि जो नरेशन बेस्ड वॉइस ओवर होते हैं, शायरी बेस्ड वॉइस ओवर होते हैं, वो करता हूँ। और चुनिंदा चीज़ें, हर काम नहीं, हर कप नहीं लेना। मतलब वो नहीं है कि मैं कहूँ कि बस आ रहा है तो आता चला जाए। मेरे हिस्से का रिस्क मुझे मिलेगा, मेरे हिस्से के लोग मुझे मिलेंगे, ऐसे ही है। तो मैं क्यों ना फिर अच्छा रिस्क कमाऊँ और अच्छा लोगों की तरह। और जो स्क्रिप्ट मैं बोलूँगा ये रहती दुनिया तक रहेगा। जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ ये ना सिर्फ आपकी समातों का हिस्सा बन रही है, ये कायनात में सेव हो गए। मैं फिर क्यों ना अच्छा बोलूँ और अच्छे स्क्रिप्ट की जानिब जाऊँ। तो फिर जब मैं उसकी प्रैक्टिस कर चुका होता हूँ और फिर जब मैं वो जुमले अदा कर रहा होता हूँ, फिर मुझे लज्जत आती है। अच्छा, अभी तक तकरीबन रफली कोई आपने 50,000 से 60,000 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करवा ली है। जी। तो सर इतना काम करने के बाद होता है कि अभी भी ढूंढते हैं कि यार कोई नई चीज़ आए जिसमें वही चस वाली बात आ जाए, मिलती है अभी भी कि बस अब हो गया यार, ठीक है काया है, बस पढ़ दिया हो गया बस? अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यानी पहले मैंने वॉइस ओवर किए डॉक्यूमेंट्रीज़ के, ठीक है। 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, खुद लिख रहे होते थे, राइट अप कर रहे होते थे, तहरीर उसकी कॉपी खुद लिख रहे होते थे। यूट्यूब के लिए ज़्यादा किया, फिर उसके बाद टीवी के लिए किया, और ये सारा सिलसिला। अब जो मुझे लगता है कि जिसमें मैं ज़्यादा लज्जत महसूस कर रहा हूँ वो ये कि शायरी और अच्छी नसर, सही। उसको मैं अब रिकॉर्ड करने का खुद अपने तय सोच रहा हूँ। मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किताब भी रिकॉर्ड करवाई। मुझे किसी ने कहा कि कुरान पाक का तर्जुमा रिकॉर्ड करवाओ, तुम्हारी आवाज़ में होना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी। जो सीधी सी बात है, शदमद और चीज़ें अभी बहुत सारी हैं, अभी हम तिफले मकतब है, तो जब हिम्मत वो आ जाएगी, ये यूँ कह लीजिए कबूलियत आ जाएगी, तो वो भी हो जाएगा। अब 2 चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे लज्जत मिलती है। एक तो अच्छी शायरी, मुंतखब शायरी,
اور منتخب نثر صحیح. جو لوگوں کی ذہنی اذیت کو کم کرے اور ذہنی سکون کا باعث بنے. کیا بات ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر شخص تکلیف میں ہے, ہر شخص مشکل میں ہے, اور کوئی کندھا نہیں ہے جس کندھے پر وہ سر رکھ سکے, کوئی آواز نہیں ہے جس آواز کو کانوں میں لگا سکے, اور کوئی شخص نہیں ہے جس کے گلے لگ کر وہ رو سکے. کیونکہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب ہمیں گلے لگنے کی ضرورت ہوتی ہے نا تو لوگ دیوار سے لگا دیتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یار آواز دیوار بن جائے اور لوگ دیوار گریا کے پاس آ کر کیا بات ہے, کیا یہ بات والا ہے. معاملہ. سر کوئی 1 2 3 جو بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب, کوئی ایسی فیوریٹ لائن یا کوئی ایسا پڑھا ہوا چھوٹا سا اسکرپٹ جو آپ سمجھتے ہیں یار یہ جو میں نے پڑھا تھا نا ضرور آیا تھا, وہ ذرا ہمارے سننے والوں کے سماعت. ایک نا پنجابی مجھے ہے, تو ظاہر ہے میں نے کام اردو میں زیادہ کیا, لیکن ایک پنجابی فلم کی ڈبنگ کی تھی, تو اس میں ایک ہیرو کا ایک نا جملہ تھا. ہیرو گرتا ہے, اسے چوٹ لگتی ہے اور ماں کی جھولی میں آ کر وہ گرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آواز آتی ہے, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕੱਢਦਾ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਆਦੀ ਧੜਕਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਸੀਦਿਆ, ਇੰਜ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ. کیا بات ہے. میں تینوں نہیں چھڑنا چاہتی. اب یہ پورا جو جملہ ہے نا, جب بھی آئی ڈونٹ نو اس سے کوئی ریلیٹ کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن میں نے ریلیٹ کیا ایٹ دیٹ مومنٹ. میں رو رہا تھا کیونکہ ماں کا وہ جو ایک پورے کا پورا تھا نا, جو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ایک جذبہ اور جو فیلنگ تھی وہ آج بھی حالات ایسے کر دیتی ہے, رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. صفدر بھائی ایک چیز مجھے یہاں پہ بتائیے گا, بلکہ میں لازمی ہمارے سننے والوں کو بھی اس میں انفارمیشن ملے گی کہ جب آپ کوئی ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایموشنلی فزیکلی اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو وائس اوور کے اندر کس طرح سے یہ انوالومنٹ آئی جائے. جس طرح آپ نے کہا کہ آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے کنیکٹیوٹی فیل کی تو تبھی تو وہ آپ کو رونگٹے کھڑے ہوئے نا. تو کیا وائس اوور کے اندر یہ فیل آتی ہے اس طرح سے جو آپ کو ایک ویڈیو والے فارمیٹ کے اندر آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. اچھا اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں بیک گراؤنڈ میوزک کانوں میں لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ میوزک آپ نے سلیکٹ کیا ہوا تو بتا دیں, نہیں تو مجھے فیل بتا دیں کہ اس کی فیل کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے ریڈیو کیا اور ریڈیو میں نے بہت دیر کیا, تو ہم آواز کے ذریعے تصویر بنانا وہ سیکھ چکے تھے. صحیح. انسان لفظوں کو تصویروں میں سوچتا ہے. تو ایک اسکرپٹ تھا, پیپسی کا وائس اوور تھا. آئی ڈونٹ نو برانڈ کا نام لینا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں سر. اچھا, تو پیپسی کا وائس اوور تھا, تو اس میں بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس اسے پروڈیوس کر رہا تھا. کووڈ کا ٹائم تھا. میرے پاس وائس اوور آیا تو میں اسٹوڈیو تو جا نہیں سکتا تھا, میرے پاس میں نے اپنے موبائل فون پر ہی کیا. ان کا بہت شاندار ہے, لیکن یہ لفظ ایسے ہے. اب مجھے پتا تھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں. صحیح. یہ لفظ جو اصل ہے وہی ہے جو میں نے بولا ہے, لیکن میں نے ان کی بات مانی اور میں نے کر دیا. اب انہوں نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ کیا. میں نے کہا میں نے بی جی ایم کان میں لگا کے اسے فیل کر کے. اب اس کا اسکرپٹ کیا تھا, پاکستان وہ چاہتے ہیں ہر سمت, وہ بچوں کا شور و غل, یاد ہے نا, یاد ہے نا جب تاریک تھی ہر طرف زندگی, یاد ہے نا. اب جب میں کہتا تھا نا یاد ہے نا, تو وہ جو پروڈیوسر تھی وہ کہتی تھی مجھے فیل ہوتا ہے, یاد آتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک اسکرپٹ یا الفاظ آپ کے اندر نہیں اترتے اور اندر سے نہیں نکلتے, پھر نئے ہو کر اندر آپ اتارتے ہیں, اسے پالش کرتے ہیں, اس کی ملمہ کاری کرتے ہیں, پھر آپ نکالتے ہیں, اس میں احساس ڈالتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ چیز بنتی ہے. مثلاً ایک شعر جو آپ نے کہا نا کہ جو آپ فیل کے ساتھ کہتے ہیں, بہت سارے اشعار ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک شعر جو مجھے بہت پہلے یاد ہوا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں, محسن لگی نہ چوٹ نئی پھر خلوص میں نے کہا نہ تھا میرے یار سوچنا. یہ شعر اچھا کیوں لگتا ہے مجھے, اس میں اتنی جگہوں پر محسن نقوی نے روکا ہے شعر کو. محسن لگی نہ چوٹ نئی پھر خلوص میں نے کہا نہ تھا میرے یار سوچنا. اب یہ ایسا شعر ہے, یہ ڈائریکٹ بھی کہا جا سکتا ہے, محسن لگی نہ چوٹ نئی پھر خلوص میں نے کہا نہ تھا میرے یار سوچنا. اب یہ زیادہ انجوائے لوگ شاید اس کو کریں, لیکن جو پہلے والا ہے اس کے اندر فیل ہے.
آپ اس کو فیل کیے بغیر نکال نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. اور کیسے ویسے تو ہزاروں اشعار ہیں جو کہ نکلتے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ذہن میں بھی رہتے ہیں, جن کو میں اچھا ایک اور دیکھیے, ایک اور شعر آپ نے چونکہ بات کر دی ہے. حیرت ہے پیڑ نیم کے دینے لگے ہیں آم. نیم کا پیڑ آم دے گا لیکن دے رہا ہے. حیرت ہے پیڑ نیم کے دینے لگے ہیں آم, پگلا گئے ہیں آپ کے چومے ہوئے درخت. اب جب یہ کہا جائے گا نا پگلا گئے ہیں آپ کے چومے ہوئے درخت, تو پگلانے پہ فیل آئے کہ پگلا گئے ہیں, وہ سر جھٹک رہے ہیں. اور جب چومنے کی بات آئے تو محسوس ہو کہ ہاں انہیں چوما جا رہا ہے درختوں کو, اور جو یہ سنے وہ درخت سے جا کر لپٹے. کیا بات ہے, تو اصل تو یہ ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے سر جب یہ بات کر رہے ہیں وائس اوور کی, آج کل بہت سارے بچے جو ہیں, کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وی آر ناٹ پاکستانی, وی آر گلوبل سٹیزن ناؤ. ٹھیک ہے, یہ ایک باؤنڈریز ہمیں دی گئی ہیں جغرافیکلی, اس کے ہم قید میں ہیں بھی, لیکن ہم ہیں گلوبل سٹیزن, انٹرنیٹ کے سٹیزن ہیں آج. تو بچہ یہاں سے بیٹھ کے انگلش کی بھی وائس اوور کر رہا ہے, اور بھی اگر اس کو کوئی لینگویج آتی ہے تو وہ بھی کر رہا ہے. ایون اردو کی بھی وائس اوور اور بھی باقی کنٹریز میں چلتی وہ کی جا رہی ہیں. اگر کوئی بچہ وائس اوور آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو کیا آواز کی جو خوبصورتی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مجھ جیسے نالائق بندے کی آواز جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ٹپ دینا چاہیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی ریاضتیں ایسی کی جاتی ہیں, کوئی ایسی آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں, ایسی مشقیں کرتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ آپ کی آواز میں امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ٹپ دینا چاہیں؟ ریاضت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, لیکن ہر ایک کو نا اپنے دائرہ کار کو طے کرنا ہوتا ہے. صحیح. مثلاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ہل چلانے والا شخص ہے اسی خوبصورتی کے ساتھ ملمہ کاری کر سکے گا. صحیح. ہر ایک کو اس کے دائرہ کار میں رکھا گیا. میں مثال سخت دینے لگا تھا, واصف علی واصف صاحب کا بڑا سخت کال ہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. ٹھیک ہے, میں آسانی سے کام لے لیتا ہوں. ریاضت بڑا کردار ادا کرتی ہے, لیکن آپ کو پہلے جاننا ہوگا کہ آپ کی آواز کی قسم کون سی ہے. ٹھیک ہے. آپ پیٹ سے بولتے ہیں, آپ سینے سے بولتے ہیں. جب میں نے کہا نا آپ پیٹ سے بولتے ہیں تو میں پیٹ سے بولا, آپ سینے سے بولتے ہیں میں سینے سے بولا, آپ گلے سے بولتے ہیں تو میں گلے سے بولا, اور آپ صرف نیزل ساؤنڈ آپ کی ہے تو نیزل ساؤنڈ. اب آپ کو پتا کہ آپ کی نیزل ساؤنڈ ہے. صحیح. فرض کر لیجیے جب آپ کو پتا نیزل ساؤنڈ اور آپ اسے کون سی ساؤنڈ بنانا چاہتے ہیں, میں گلے سے بولتا ہوں زیادہ. ٹھیک ہے. جب کوئی کریکٹر آتا ہے, اب جب میں نے کہا نا کریکٹر آتا ہے تو میں پیٹ سے بولا, تو اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی آواز کا پتہ ہو. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں کہ کون کہاں سے بول رہا ہے, کیونکہ ایک عام کامن پرسن کو تو پتہ نہیں چلے گا. کامن پرسن جب غور کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں. یعنی آج سے پہلے آئی ڈونٹ نو آپ کو اس بات کا کس انداز سے آئیڈیا ہوا یا نہیں ہوا کہ آپ نیزل ساؤنڈ ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ دو ہی باتیں, یا تو لوگوں کے بتانے پہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے, تھوڑا فیل ہوا ہے مجھے, تھوڑا فیل ہو گیا. اب نیزل ساؤنڈ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گلے پر غور کرنا شروع کریں گے. جب میں نے کہا کہ گلے پر غور کرنا شروع کریں گے, تو یہ میں یہاں سے بولا ہوں, میں نے اس پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ کتنا تو موجود ہوتی ہے, طاقت موجود ہوتی ہے, انرجی موجود ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا, کسی ایکسپرٹ سے آپ پوچھ لیجیے, اس کے پاس چلے جائیے, اس سے سیکھ لیجیے. اور سیکھنے میں کوئی غرض نہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نہ سیکھنے کا ہے. ہم کسی کو بڑا ماننا نہیں چاہتے, یہ ایک پرابلم ہے. میں نے بھی لیں تو تعریف نہیں کرتے, اور آپ کا بڑا پن مجھے یہ لگ رہا ہے ہر جگہ پہ آپ کوٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے سیکھا ہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں فرض کریں کہ ان کا نام نہیں لوں گا تو پھر میں چھوٹا پڑ جاؤں گا. پھر میں اپنے آپ کو بڑا کر کے میں کیا کر لوں گا؟ بہت بڑی بات ہے سر. میں تو نہیں کچھ کر سکتا. دو ایسے اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں لازمی بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جب آپ کو اپنی آواز کا پتہ چل جائے پھر اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اور پریکٹس ٹھیک الفاظ کی کریں. صحیح. ادائیگی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. جب ادائیگی ٹھیک ہوگی تو آپ کو خود لذت ملے گی. آپ یقین کیجئے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو مجھے اچھا شعر لگتا ہے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں, اس کی لذت لیتا ہوں. مثلاً ایک غزل کا ایک حصہ ہے, وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں ہیں جو کہ آزاد ہیں. کیا بات ہے. اب جب میں نے کہتا ہوں نا چند گھڑیاں ہیں جو کہ آزاد ہیں, میں اس کی لذت لیتا ہوں. تو آپ لذت لے کر جب بات کریں گے تو پھر آپ کا نقطہ نظر اپنے آپ کو لے کر بھی مختلف ہو جائے گا, لوگوں کا بھی. لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا, جی, وہ یہ کہ آپ کی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی ایک ہو جائے, بولتے ہوئے بھی تفاوت نہ ہو, اس میں فرق نہ ہو. اس پہ صحیح. آپ گھر میں گالم گلوچ سے کام لے رہے ہیں اور باہر آپ جعلی معزز بن رہے ہیں, لیکن یہ تو بڑا مشکل ٹاسک دے دیا اپنے عوام کے لیے.
करना पड़ेगा सर, यहाँ तो चेहरे ही दो हैं भाईजान, जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं वो आप किसी शोबे को टच कर लें, ड्यूल फेस, ठीक है, उसके बगैर मुझे लग रहा है कि शायद वो समझते जिंदगी नहीं होने के लिए वो जो 1% या 2% लोग हैं उस कबील में आने के लिए, उस कबीले में आने के लिए आपको ये एफर्ट पुट करना, इस पर एफर्ट पुट कर लेगा, अच्छा रहने की और अच्छा करने की, वो कामयाब रहेगा। यानी ये तयशुदा बात है, मैंने इसका तजर्बा किया है कि अगर मैं अच्छी उर्दू बोलता रहूं जी, तो मैं कई अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वालों पर भारी रहूँगा। बिल्कुल सही है। एक मेरे बिजनेस पार्टनर हैं तो वो बोलते ही अंग्रेज़ी हैं, ठीक है, तो कहते हैं मैं आपके सामने बहुत मोहतात होकर अंग्रेज़ी बोलता हूँ कि कहीं मैं गलत लफ्ज़ ना बोलूँ, तो आप उर्दू बोल रहे होते हैं और आपकी उर्दू को मैं पकड़ नहीं पाता, आप मेरी इंग्लिश को ना पकड़ लें, या ये कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खुद ही समझ आ जाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ अच्छी बोलने के चक्कर में, तो मैं बहुत मोहतात हो जाता हूँ। तो लोग आपके सामने मोहतात हो जाएंगे बिल्कुल सही। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो। सिर्फ फ़र्क ये है आपने तय करना है अपना मयार। अगर आपने लोगों के मयार के मुताबिक चलना है, वाना बी स्टाइल या कुछ ऐसा, तो फिर तो मैं आपसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात कर रहा होता। बिल्कुल सही है। यानी मैं, आप पूरी मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बहुत कम ऐसा होगा कि मैंने इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इंग्लिश को भी अंग्रेज़ी ज़ुबान ही कह रहा हूँ। ऐसे ही तो वही कोशिश करके करना पड़ता है, सही, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, आए हाय कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता, कंधा नहीं मिलेगा किसी भी। बेशक ऐसे ऐसे कुछ और चंद टिप्स आप दे रहे थे, उसी के ऊपर दोबारा। हाँ, एक तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अपनी आवाज़ को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पर ऊंची आवाज़ में 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। सही। तीसरा, सांस की प्रैक्टिस। अच्छा, जब आपने ऊंची आवाज़ कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी नॉर्मल पिच है उससे थोड़ा सा उससे लेवल ज़्यादा बढ़ा गला के। फाड़ कर, ठीक है, अपने आप को कमरे में कैद करना चाहें कमरे में कैद कर लें, साउंड प्रूफ कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो तकिया थोड़ा सा करीब लेकर, ठीक है, ये नहीं कि मुंह के ऊपर ही रख लेना और आपने फिर जो है तकिया करीब बेसिकली लाकर लोगों को ऊंची अजियत आवाज़ नहीं पहुंचानी, लोगों को अजियत नहीं पहुंचानी। वो छोटे होते हमने किताब में एक पढ़ा था, उन्होंने कहा कि मुझे बाजा लेके दे दें, उनका बेटे तुम शोर मचाओगे, उन्होंने कहा मैं तब बजाऊंगा जब सब सो रहे होंगे। ठीक है, तो आपने जब सब सो रहे हो तो तब आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, तो तब यानी आपने अजियत नहीं पहुंचानी दूसरे लोगों को। सही। सांस की प्रैक्टिस करें, सांस की मश्क ज़रूरी है। जितना लंबा सांस आप चला सकते होंगे आप उतना लंबा डायलॉग बोल सकते होंगे। ठीक है, अब मैंने एक जुमला बोला एक ही सांस में, जितना लंबा सांस आप चला सकते होंगे उतना लंबा डायलॉग आप बोल सकते होंगे। अब इससे भी ज़्यादा लेंथी डायलॉग आ जाते हैं बाज़ दफ़ा डॉक्यूमेंट्रीज में, जी, बाज़ दफ़ा छोटे डायलॉग होते हैं, तो उसमें सांस नहीं तोड़ना होता, तो जुमले के बीच में तसलसल नहीं टूटे आपका। हाँ, तसलसल ना टूटे, रवानी रहे। आप अगर शद मद लगा रहे हैं, वक्फा दे रहे हैं जुमले में, इसके साथ रवानी रहे, हाँ, सांस ना उखड़े। सांस ना उखड़े। मसलन मैं उसी शेर की मिसाल दे देता हूँ, मोहसिन नकवी वाले शेर जी। मोहसिन, लगी न चोट नई फिर खुलूस में, मैंने कहा न था मेरे यार सोचना, अब मैंने सांस लिया है। पूरा कहने के बाद अगर इतने शद जज्म मद ये सब कुछ लगाने के बाद, वक्फा देने के बाद आपका सांस टूट रहा है, तो फिर वो जुमले की लज्जत नहीं रह जाएगी, बिल्कुल ऐसे और आप वो कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि जिस तरह अभी तो हम बैठे हुए हैं गुफ्तगू कर रहे हैं, तो शायद हमें सांस का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अक्सर चलते हुए या थोड़ा सा आप कहीं से चल के आए हैं तो आप उस वक्त अगर बात करते हैं तो सांस लाजमी आपका उखड़ता ज़रूर है। तो इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिस है? अभी ख़ास तौर पर जिस तरह ये सिंगर्स हैं हमारे, स्टेज पे नाच कूद भी रहे हैं, दो के बहुत सारे 99% पीछे बैकग्राउंड पे म्यूजिक चल रहा होता है और लिप सिंक कर रहे हैं, लेकिन जो लाइव वाले भी हैं उसके दौरान भी अच्छी खासी मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट उनका सांस नहीं उखड़ता। अगेन वो प्रैक्टिस है ना, यानी आप 20-25 मिनट, यानी मैंने अपने लिए कुलिया तय किया था 27 मिनट वॉक करनी है। ठीक है, और वॉक भी सिर्फ वॉक नहीं है, उसमें रनिंग शामिल है, तो सांस पे आपकी कंट्रोल हो जाता है। सही। फिर मैंने दरमियान में एक ये भी तजर्बा किया कि मैं चलते हुए वीडियो बनाऊंगा, चलते हुए बात करूंगा। तो चलते हुए बात करने का जो मेरा मतलब मकसद था वो ये था कि आवाज़ पक्की हो जाए। सही, बिल्कुल। मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं था, जो हिडन जो मेरे लिए यानी टास्क था अपने लिए, वो ये था कि मैं वीडियोस बनाते हुए अपनी आवाज़ को पक्का करूं। तो ये प्रैक्टिस, अगेन ये प्रैक्टिस है। और फिर ये कि आपके फेफड़ों ने काम देना ना, तो फेफड़े मजबूत होंगे। फेफड़े कैसे मजबूत हो सकते हैं? सांस की प्रैक्टिस से, वॉक करने से। ये पूरा लाइफ स्टाइल है। ऐसा नहीं हो सकता मैं इमली आलू बुखारा चटनी ये खाता रहूं और उसके बाद मैं कहूँ मेरा गला पक गया, ठंडे मशरूबात पीऊँ। मैं चाय नहीं पीता, मैं बोतल नहीं पीता। सही।
बहुत कम ऐसा होता है कि किसी जगह पर मैं जाऊं और वो चाय ला के सामने रख दें तो मैं कह देता हूँ यार ग्रीन टी ला के दे। अच्छा, चाय क्यों नहीं? क्योंकि चाय तो गर्म होती है, इससे तो बल्कि थोड़ा सुकून नहीं मिलता। नहीं, ठंडे का नहीं, तो सुना था मैंने, ये गर्म का मैं पहली बार इसका इम्पैक्ट आपके स्टमक पर होता है। ओके, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे महसूस ठीक होता है, है, प्रैक्टिस से आपने हाँ, चीज़ ठीक है, मेरी जो प्रैक्टिस है स्टमक पर होता है। स्टमक डिस्टर्ब होगा, स्टमक तेजाबियत पैदा करेगा, तेजाबियत जब पैदा होगी तो आपकी ज़ुबान से, आपके पूरे के पूरे मुंह से जो लुआब बनेगा वो तेजाबियत पैदा करेगा। ठीक है, एसिडिटी का इशू पैदा होता है ना चाय से। जी। आपका बोलने का काम है, और जब आप बोलने लगें तो खुशबू के भभके उड़ रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो मैं इलायची का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब अभी भी गाड़ी में देखिए इलायची का पूरा डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है। सही। होता ये है कि एसिडिटी रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है चाय पीने से, बॉटल पीने से। ठीक है, तो इसलिए गुरेज करना चाहिए बोलने वालों को। सही। जो अच्छे खतीब होते हैं वो मलट्ठी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मलट्ठी क्यों का करते हैं? क्योंकि गला वो साफ रखती है, खराश नहीं आती। तो मेरा कई दिन से गला खराब होने के बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, शहद का इस्तेमाल कर ले, बिल्कुल सही है। या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। आपको बहुत बामरे मजबूरी हो जाए कि आप कहें नहीं नहीं यार पी, और बेतकल्लुफ़ दोस्त हों तो फिर उनकी खातिर जहर खुरानी कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। इसके अलावा कोई और आप मशवरा देना चाहें जो यंग बच्चे हमारे इस डोमेन में आना चाह रहे हैं, कि उसके लिए कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जाए ताकि आगे जाके आप वाली एक जो शाइस्तगी आवाज़ में वो मिल सके? अच्छा, एक तो ये उर्दू अगर सीखना चाहते हैं सही। तो उर्दू को प्रॉपर सीखें, उर्दू की किताबें पढ़ें, ठीक है। रोज़ाना की बुनियाद पर 10 सफ़हात पढ़ लें। अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ें, 10 सफ़हात पढ़ लें। ठीक है, उर्दू का वॉइस ओवर करना चाहते हैं, अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की 10 मिनट सुन लें। सही। इंग्लिश का वॉइस ओवर करना चाहते हैं, आप गूगल कर लेंगे टॉप 10 वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑफ इंग्लिश। आगे उर्दू के तो शायद आपको इस अंदाज से ना मिलें, कुछ कम मिलेंगे, तलत साहब हैं या बाकी और दीगर नाम हैं। तो इंग्लिश की आपको लिस्ट मिल जाएगी, उनको सेलेक्ट करके उनके 10-10 मिनट की वॉइस ओवर आप सुने। जी। आपको मैं मज़ेदार बात बताऊं, ये 20 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है मिनिमम में। आपको बिल्कुल है, बहुत बड़ी ये कम करके मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये 2025 तक इसने 30 बिलियन डॉलर तक, 30 अरब डॉलर तक चले जाना है। अभी उस दिन हमारी बात हो रही थी ना ऑफ कैमरा के एआई के आने से इसकी डिमांड बढ़ गई है। बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, लोग कहते हैं कम हो गई, नहीं, इसकी डिमांड बढ़ गई है। जो एहसास मैं दे सकता हूँ ना, रिपोर्ट कैसे नहीं दे सकता है? सकता। तो मैं जब लफ्ज़ मोहब्बत कहूँगा तो वो कैसे मोहब्बत का साउंड वो फील करेगा। यानी नूर जहाँ की कामयाबी के बारे में बात पूछी गई तो किसी ने कहा कि लता मंगेशकर और नूर जहाँ का कंपैरिजन बनता है। उन्होंने कहा नहीं बनता। उन्होंने कैसे नहीं बनता? उनका लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, वो महबूब की बाहों में नहीं लिपटी। नूर जहाँ को तो एक्सपीरियंस था, और जब वो ये बात कहती थी जदों हौली जई लेना मेरा ना मैं था मर जानिया, तो महसूस होता था वो था मर जाती थी। ठीक है, तो बात वही है, आप जब था मरते हैं ना तो फिर आपको मज़ा आता है, फिर आप वो फील लाते हैं। तो रोबोट तो था नहीं मर सकता ना, रोबोट का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आप इन एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते चले जाइए, तजर्बात को कलेक्ट करते चले जाइए, इकट्ठा कर लीजिए, महंगे बिकेंगे आप। बिल्कुल। और जो आपने कहा ना प्रैक्टिसेस, एक तो ये कि सर्च करके उनकी वो प्रैक्टिस करें, दूसरा सांस की प्रैक्टिस करें, तीसरा कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, चौथा तलफ़्फ़ुज़ पर काम करें, सही, पांचवीं रोज़मर्रा की जो आपकी लैंग्वेज है उसको एक करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हिसाब अरबी में होगा, पढ़ते हम उर्दू हैं, और बंदा हम अंग्रेज़ चाहते हैं। ये मसला, ये वाकई जेन्युइन मसला है। बिल्कुल। यानी जब मैं लफ्ज़ कह रहा होता हूँ मसला, तो लोग कहते हैं सर जी ये मसला क्या है, आपने इस पे हमजा को खड़ा कर दिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये लफ्ज़ मसला ही है, हमने इसे मसला बना दिया। तो ये इस चीज़ का ख्याल है। ये 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं, और वैसे हर एक की पर्सनल एफर्ट है, हर एक का अपना दायरा कार है, वो उसमें घूमता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाइए जिसके ऊपर आपकी शायरी, आपकी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आवाज़ मौजूद हो, आपके नरेशन में आवाज़ मौजूद हो, यानी 4-5 मुख्तलिफ सैम्पल्स आपके मौजूद हो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करके, वॉइस ओवर करके, वीडियोस बना के आप डालते जाइए अपनी प्रोफाइल पर। सही, क्योंकि आपने बताया कि नेटिजन है हम, तो लोग वहाँ से आपको खुद। बिल्कुल। मैं आज तक एक फिल्म की डबिंग के लिए तो मैं गया था, या दूसरा एक और वॉइस ओवर था, 2 वॉइस ओवर्स के लिए मैं स्टूडियो गया हूँ। सही, मैं आज तक स्टूडियो नहीं गया। बल्कि वो आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया भी था, बड़ी मज़ेदार। आप वो एक कहते हैं एक्टिविटी करते हैं कि अलमारी खोल के, और वो ज़रा बताइए, बल्कि ये जुगाड़ है सारी बातें हमारे, चूंकि कपड़ों वाली जो अलमारी होती है ना वो भरी होती है कपड़ों से, बिल्कुल, आवाज़ उसमें गूंजती नहीं है। हाँ, ठीक है, साउंड प्रूफिंग होती है, साउंड प्रूफिंग होती है। तो आप वाला जो वॉइस ओवर था मैंने वही किया जी। आपने कहा ना कि आपने क्यों करके कर दिया, तो वही किया। मोबाइल चूंकि वो प्रैक्टिस हो चुकी है, मोबाइल सामने, स्क्रिप्ट सामने, PDF की फाइल होती है, उसको ऑन करके
रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं और फिर उसी पर जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आवाज़ गूंजती नहीं है, शोर भी नहीं आता, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि ये जो क्वालिटी अभी रॉड के माइक आपके लगे हुए, में भी इससे भी वो बहुत बेहतर क्वालिटी देती है, क्योंकि आईफोन का अपना भी ज़ाहिर है कि माइक अच्छा है और वो साउंड प्रूफिंग इस अंदाज से होती है कि आपको मज़ा आता है। ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा, लेकिन बच्चे सामने सर हिला रहे हैं कि ये करेंगे अभी ये जुगाड़। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो कपड़े चीज़ें सब मौजूद होना चाहिए। आपने स्टूडियोज़ में अक्सर देखा होगा कि फोम लगा होता है, मेरे ऊपर लगा हुआ स्टूडियो, ठीक है, हाँ, आप ज़ाहिर आपने अगर बनाया हुआ तो फिर ज़ाहिर आपको पता है, तो वो इस वजह से कि आवाज़ गूंजती नहीं, तो बस ये। और इसके अलावा अगर अक्सर हमने देखा है कि वॉशरूम के, जिसको हम अक्सर कह भी देते हैं आम जुबान में कि बाथरूम सिंगर है, तो उसमें भी एक बड़ी जो आम सी आवाज़ भी जो है ना बड़ी मज़ेदार सी, क्योंकि सिंगिंग के लिए है, वो वॉइस ओवर के लिए नहीं। अच्छा, वो वॉइस ओवर के लिए नहीं है, ठीक है। वॉइस ओवर में तो आवाज़ बुरी हो जाएगी वहाँ पर। अच्छा, इसमें मुझे सबसे भाई एक छोटी सी कंप्लेंट है आपकी डोमेन से जी। जब मैं ये सारा ज़ाहिर अपना सिलसिला शुरू कर रहा था तो मुझे था कि थोड़ा सा मैं बेहतर सीखने की बात करूँ। तो पूरे पाकिस्तान में जो एक मैं अपनी इंटरनेट की रिसर्च कर पाया, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो प्रॉपर इसमें एक मेथड के तहत टीच कर रहा हो। अदील शाहिद हैं, जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि मुझे आप पसंद है और अदील शाहिद भाई पसंद है, उसके अलावा मैंने किसी को सुना नहीं, इसलिए मैं किसी और का नाम नहीं ले सकता। अदील शाहिद साहब कोर्स करवाते हैं इसका। इसमें क्या ऐसी वजह, और आजकल तो वैसे भी पिछले 2 साल से चल ही सिर्फ कोर्स रहे हैं पाकिस्तान में, ये एक नया बिजनेस ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या वजह है कि सिखाने वाले लोग क्यों नहीं है इसमें? सीखने वाले नहीं है सर, सीखने वाले तो देखें तब होंगे ना जिस आप देखें मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला। वजह आपको बताता हूँ। मैंने दो वर्कशॉप्स करवाई हैं। आप पिछले दिनों जब कासिम अली शाह फाउंडेशन गए हुए थे, मैं था वहाँ पर, जी जी बिल्कुल, लेकिन मुझे आना था, जल्दी आना, तो इस वजह से निकला है, वरना मैं मिलता आपसे। मैंने 2 कोर्सेज वहाँ पर वो फुल था, ऐसा नहीं कि वो फुल नहीं था, लेकिन लोग बहुत जज्बे के साथ आते हैं, फिर उनके जज्बे मांद पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें फौरी पैसा कमाना है। ऐसे ही है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, 2012 में मैंने वॉइस ओवर का काम शुरू किया था। मुझे पहली फिल्म की डबिंग के 600 रुपये मिले थे, जो कि 600 का आ जाना चाहिए, 600 रुपये मिले थे, पूरी फिल्म की डबिंग थी। और 4 दफ़ा मैं आया गया था और चारों दफ़ा मेरा किराया लग गया, 600 रुपये पूरे हो गए थे मेरे, मतलब जेब से किराए में, ठीक है। यूँ कह लीजिए जेब से ना लगाने पड़े, लेकिन रोटी जेब से खाना पड़ी मुझे। लेकिन उसके बाद आकर मैंने लाखों चार्ज किया है, माशाल्लाह, ठीक है। और अब मैं लास्ट टाइम आपको बता भी रहा था, बात करने का मकसद ये कि फिर इतना सब्र होना चाहिए। हम जो अब जिस जनरेशन में मौजूद हैं, जो यंग जनरेशन है, जो नेटिजन्स हैं, ये फौरी रिजल्ट चाहते हैं, ये फौरी पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। अब देखें, जब आपकी क्वालिटी होती है ना, अब आपने हालांकि मुझे बड़ा ओपनली कहा कि मुनीर भाई जैसे कहेंगे कर लेंगे। मैंने क्या कहा, मैं कहा नहीं भाई, मुझे आवाज़ पसंद आई है, क्लाइंट को पसंद आई है, तो मैं क्यों उस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करवाऊँ। लेकिन जब आपने अपनी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करवाऊँ। वेयर एज कि ये चाहता तो मैं कोई जुगाड़ में भी करवा सकता था कहीं से, या आपसे ही रिक्वेस्ट कर देता सर, ठीक है। लेकिन बात ये कि वैल्यू करना है ना हमें। जब एक वैल्यूएबल चीज़ होगी तो आपका भी दिल नहीं चाहेगा कि यार आप उसको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड करें। कोर्सेज करवाए जा सकते हैं। मैंने अभी प्लान ये कर रहा हूँ, 2 चीज़ों की मैं प्लान कर रहा हूँ, आप ही के तवज्जुह से ये समझ रहे, मैं रिवील भी कर रहा हूँ ये बात। मैं ऑफिस का आपको बता रहा था, ऑफिस में ही मैं एक दीवार बना रहा हूँ, एक रूम बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दीवारे गिरिया रख रहा हूँ। यानी लोग आए, अपना दुख सुनाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। मैं जिन लोगों के सेशन की फीस चार्ज करता हूँ वो तो चार्ज करता ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ ये एक ड्रॉबैक कह लीजिए, कुछ और मसला कह लीजिए, प्रॉब्लम ये होगी कि सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और सबकी मौजूदगी में ही आपने अपना दुख सुनाना है या क्वेश्चन करना है। सही। इंडिविजुअल अगर आपने सेशन लेना है तो वो तो ज़ाहिर है कि फिर आपको चार्ज होगा। तो उसमें मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि उसमें मैं वॉइस ओवर, तलफ़ुज़, तैतुल लफ्ज़ और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी करवाऊँ। क्या बात। स्टार्टिंग में जो लोग सीखना चाहें वाकई। सही। और फिर अगर कोई शख्स कहे कि मैं इंडिविजुअल आपसे सीखना चाहता हूँ या हम बैच की सूरत में आपसे सीखना चाहते हैं, फिर चार्ज करेंगे, क्योंकि मेरी कोर्सेज से जान जाती है। सर, पाकिस्तान में इतने कोर्सेज बिक रहे हैं और लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन इसमें एक मशवरा देना चाहूँगा, बाकी मर्जी आपकी अपनी है, बजाय इसके फ्री करें और आप ही, बच्चे नहीं, आप ही डिसार्ट हो जाएं, क्योंकि फ्री की दी हुई चीज़ कभी भी ये भी है वैल्यू नहीं करती। आप इतना मिनिमम सा रख दें कि किसी को चुभे भी नहीं और आपको भी ये हो कि हाँ यार ठीक है, एक बच्चा जो आ रहा है तो मैं भी इसको दिल लगा के, क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट जुड़े होते हैं चीज़ों के साथ। तो जब वो आपकी आगे ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर आप भी डिसार्ट होंगे, बजाय इसके कि वो दीवार जो बनाए वो वीराना हो जाए, तो उसको हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए बनाऊंगा। एक सिस्टम ज़ाहिर बनाऊंगा, जो दीवारें गिरिया बनानी है ना, जहाँ पर लोगों ने आकर रोना है और लंगर खाना है, उसके लिए तो मैंने एक सिस्टम बनाना है। ज़ाहिर है कि मैंने अपनी जो मंथली मेरा रेवेन्यू होगा उसमें से मैं एक मखसूस हिस्सा रखूंगा कि हर
जो हफ्ता इतवार वाला दिन होगा, जो लोग आएंगे उनके लिए खाना भी होगा, वो बात भी करेंगे, सही उसका तो मैं ज़ाहिर है कि अपनी इनकम में से सिस्टम रखूंगा मैं। जो सिखाने वाली बात है वो पहले मैं फ्री में इस वजह से सिखाऊंगा कि लोगों के अंदर काम करने का रुझान पैदा हो। सही मैं फ्री में भी सिखा के देख लूँगा, पैसों से भी सिखा के देख लूँगा। जहाँ से मुझे ज़्यादा मतलब मिलेगा, लोगों का रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा या रिस्पांस ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वो कर लेंगे। असल में मेरा ये मकसद बुनियादी तौर पर अल्टीमेटली ये है कि ज़्यादा सारे लोग काम कर रहे हो, जी ज़्यादा सारा काम होगा, ज़्यादा सारा पैसा कमाएंगे वो लोग और ज़्यादा कामयाब होंगे और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी अब गुजार इस पे देखें सर, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप आज फाइवर पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, आपको गिग्स मिलेंगी, वहाँ पे आपको इसकी जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट टू से वो हिंदी के नाम से है सर, जी, उर्दू के नाम से है ही नहीं, क्योंकि उर्दू को तो हमने जिंदा रखा ही नहीं, ना कोशिश की गई। जी। तो बात वही हो रही होगी, स्क्रिप्ट भी आपको उर्दू में ही मिलेगा, लेकिन टाइटल वहाँ पे हिंदी के नाम से चल रहा है वो, ठीक है। तो इस वजह से जितने लोग तो इस ज्यादा बात आएंगे, का बहुत दुख होता है। इंडिया के 1-2 प्रोजेक्ट थे मैंने किए, तो वो उन्होंने कहा जी कि आप ज़्यादा चार्ज करते हैं, सही तो आप ऐसा करें कि ये 100 कोटेशंस हैं या 100 ये जुमले हैं या कुछ ऐसा, तो इसके आप इतने पैसे ले लें। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ज़ाहिर है कि अब उनके पास अगर फ़र्ज़ करें कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद होती जो कम पैसों में कर देता तो वो करवा लेते। मैं तो अपनी वजह से नहीं किया जी ना, जी तो दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। उन्होंने फिर वही हिंदी में करवाया, उन्होंने कहा हमारा बजट, तो उन्होंने वहीं से कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट लिया। अगर यहाँ पर आर्टिस्ट मौजूद होता तो ये ज़ाहिर है काम आना था, या फाइवर पर भी काम आना था। मेरे नाम से दोस्त ने बनाई हुई थी, वो फाइवर की गिग बनाई थी, क्योंकि मुझे काम वैसे मिल जाता तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो सीधी बात है। सही फाइवर और अपवर्क पर ये कि वो कहते थे खुद पिच करना पड़ता जी है। जी ऐसे ही तो मैंने कहा ये लंबा काम है यार, घर आ रहा है, ठीक आ रहा है, सुस्ती भी तो होती है ना, एज अ पाकिस्तानी तो सुस्ती भी तो मौजूद है ना। लेकिन अगेन मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग आएँ इस फील्ड में, ज़्यादा सीखें और ज़्यादा काम करें। और आपकी बात पर मैं गौर करूँगा कि कुछ फीस रख के प्रॉपर कोर्स की सूरत देकर, तो फिर उसको उससे ये कि दोनों तरफ जो है ना क्वालिटी का मयार जो है वो बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ लोग सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, एक दिन में सीखना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक दिन वाला बस वैसे ही होता है ना, फिर वो ऐसा ठीक है जुगाड़ में फिर ऐसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी जो आपकी एक और नई डोमेन है, ठीक है, जिसके बारे में मुझे भी सुन के पहले तो वहाँ पे से पता चला, क्योंकि ज़्यादातर इस पे जो आपकी प्रोफाइल पे पढ़ा नहीं हुआ कहीं पे, ठीक है। आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के ऊपर बड़ा बिलीव रखते हैं और उस पर बात भी करते हैं, ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि आप इसके पेड और अनपेड सेशन भी देते हैं। पेड अच्छा, अनपेड वाला इसमें नहीं रखा अब हुआ? unpaid अच्छा, नहीं है। वाह 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 हाँ, दोस्त अगर कोई हो, अजीज हो, तो उसके लिए तो अनपेड हो सकता है, या कुछ घर का आया, फैमिली फ्रेंड्स हो कुछ। वैसे मैंने इस बात का नतीजा मैंने निचोड़ निकाला कि इसका अनपेड नहीं करना। लोगों को नसीहत मुफ्त वाली समझ नहीं वो समझ नहीं आती, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला चक्कर हो जाता है वो तो। कुछ लोग, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं इस पर जाने से पहले, कुछ लोग पर्सनल रिलेशन डेवलप करना चाह रहे होते हैं जब ऐसे ही है, इसमें आते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। ताकि फ्री में काम चलता रहे। मैं उसका कायल नहीं रहा, अब नहीं कायल रहा। पहले मैंने बहुत किया ये। मैं मॉडल टाउन पार्क में वॉक के लिए जब जाता था, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, तो हम 1-to-1 सेशन या इस तरह से करते थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है, इस पर मेरा बिलीव, मेरा जो तरीकाकार है, मैं तरीका इलाज भी नहीं कहता, नहीं, ये डिस्कशन है, ठीक है, ये प्यार मोहब्बत से होने वाला काम है, होने वाली बात है। वो ये है कि 1 सेशन, सही 2 सेशन या मैक्सिमम 3 सेशंस, उसके बाद आप खुद मछली पकड़ें, बजाय इसके कि हर दफ़ा मैं मछली पकड़ूं। बिल्कुल सही है। हाँ, कई ऐसे लोग या कई ऐसे ख़ानदान हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम आपसे वैसे ताल्लुक़ में रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेशंस लेना चाहते हैं। मैं ख़ानदान, मैं रिवील नहीं करता नाम क्या लेना या कुछ भी ऐसा, दादी से लेकर पोती तक, पोते तक, ये 8 से 9 लोग बनते हैं। ये 9 के 9 मेरे क्लाइंट्स हैं। क्या बात है। और पता कैसे चला? उन्होंने कहा जी कि दादी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं हमारी, तो आप काइंडली अगर आ सकें, घर में आ सकें, वो आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें बड़ा इश्तियाक है, हम आपकी डबल फीस पे करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे दिल में आया, मैंने कहा यार चले जाना चाहिए, लाहौर में ही है तो चले जाते हैं। मैं चला गया, नया एक्सपीरियंस भी मैंने कहा हो जाएगा, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। मैंने चार्ज भी ठीक किया उनसे, ये नहीं कि चार्ज नहीं ठीक है, मैं ठीक चार्ज किया, मैं अल ऐलान कह रहा हूँ, ठीक है। मैं गया तो उनकी जो बहू थी, उन्होंने कहा कि सर सफदर आए हैं। इधर से उसके हस्बैंड ने कहा सर आप, और बाकी लोगों ने भी, तो उनके सर हमने भी आपसे सेशन लेना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या समझेंगे घर वाले, क्या समझेंगे या कुछ ऐसा। तो आपको दादी ने बुलाकर तो बड़ा हम पे इनाम कर दिया, करम कर दिया, रहम कर दिया, एहसान हो गया ये। तो मैं उस वक्त ओवरवेलमिंग सा मुझे फील भी हुआ, अच्छा भी फील हुआ, थोड़ा सा मैं घबराया भी कि यार सारे लोग ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे। हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं उनसे बात करता रहा,
ان کو ہیل کیا, ان سے ڈسکشن ہوئی, جو ان کی پرابلم تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور وہ بہت خوش ہوئیں. تو اب جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, ایون تو انہیں اپنی بہو سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے فون کرتی ہیں, صفدر اپوائنٹمنٹ لے کے, یہ نہیں کہ وداؤٹ اپوائنٹمنٹ لے کے, صفدر یہ کام ہے اور اس کو سمجھا دو, اس کی بھی فیس میں تمہیں پے کر رہی ہوں اس کا. تو یہ ہوتا ٹھیک ہے. تو اس قسم کا. اچھا, جو دوسرے مختلف جو سائیکولوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کام کر رہے ہیں وہ میڈیسنس پر لگا دیتے ہیں یا بار بار سیشنز پر لگا دیتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ یار یہ کرنے لگ جائیں, یہ کرتے رہیں, آپ ٹھیک رہیں گے. اچھا, یہ پروون ہے ویسے یا صرف آپ نے بس کر کر کے تجربوں سے ہے؟ پروون اپنا بھی پروون ہے اور ویسے بھی سائیکولوجیکلی پروون ہے. مثلا اس کی مثال میں دے دیتا ہوں نا, میں نے 27 منٹ واک کا پہلے اسٹارٹ کیا تھا. اوکے, کہ 27 منٹ آپ نے واک کرنی. یہ پروون بات ہے کہ آپ 15 to 20 منٹ واک کرتے ہیں, آپ کا انگزائٹی لیول, ڈپریشن لیول نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, آپ 3 ٹائم ڈیپ بریدنگ کر لیجئے, آپ کی انگزائٹی لیول, ڈپریشن لیول نیچے آ جائے گا. بالکل. اور اگر زیادہ ہے تو 30 منٹ مسلسل کیجیے, آپ کی انگزائٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. لوگ کرتے نہیں ہیں, لوگ کرنا نہیں چاہتے. صحیح. میں پھر چیک بھی رکھتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ نے بتانا ہے مجھے. ٹھیک ہے. میں نے اب ایک ایسا سسٹم بھی ڈیولپ کر دیا کہ ٹیم کے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں سر آپ نے پریکٹس کی یا میم آپ نے پریکٹس کی, تو وہ جو خود کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر رسپونڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. جو خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, کیونکہ میں اکیلا ٹھیک نہیں کر سکتا کسی, ایسے ہی ہے. سامنے والے کو ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, ایفرٹ پٹ کرنا پڑے گی. میں تو بتا سکتا ہوں نا کہ علی فنار ہے, بے بکری ہے, بالکل صحیح. وہ کہے کہ نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا, تو پھر میں کیسے اس سے ڈنڈا لے کر نہیں پڑھا سکتا. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ پروون چیزیں ہیں. پھر مطلب 9 کے اسٹیپس, کچھ لوگوں کے لیے 5 کے اسٹیپس, ٹھیک ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ 5 کے اسٹیپس کرنے والا ہے یا 9 کے اسٹیپس کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہماری باڈی کو ڈیلی بیسس پر پانی کی ضرورت ہے, منیمم 7 گلاس پانی پینا چاہیے. مجھے بھی, آپ کو بھی, کچھ لوگوں کو زیادہ پینا چاہیے. صحیح. کچھ لوگوں کے اندر پانی رکتا نہیں ہے, تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. مزیدار آپ کو بات بتاؤں, جن لوگوں کے جسم کے اندر پانی اسٹے نہیں کرتا, وہ اگر کوکونٹ واٹر تھوڑا سا ایڈ کر لیں تو پانی ان کے اندر اسٹے کرنے لگ جائے گا. اوکے. پانی اسٹے کرے گا تو ان کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی. جی. ہائیڈریٹڈ رہے گی ان کی باڈی, تو ان کا جو ریئیکشن ہوگا نا وہ امپلسو نہیں ہوگا. یہ بہت امپیکٹ کرتا ہے, اسی لیے تو کہا جاتا ہے جو کھاتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے. بالکل. تو یہ یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں, میں کیا کیا اس میں ہوں بتاؤں. تو آپ یہ جتنا بھی سارے سیشنز کرتے ہیں تو یہ موسٹلی سارے لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, کہ آپ کو پہلے تو لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, اس کے بعد باقی پھر آپ کا دماغی چیزیں صحیح ہوں گی. میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ لائف اسٹائل چینج کروں, کوشش یہ ہوتی ہے. لیکن مینٹل جو ہیلتھ ہے نا, اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی پریکٹسز یا اس کی بات مختلف ہوتی ہے, وہ میں اس پر بھی زیادہ. زندگی میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی بیسکس ہیں. اسپرچل ہیلتھ, بالکل سب سے پہلے. آپ کسی کو مانتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے, روح کو تو مانتے ہیں, روح موجود ہے. بالکل. مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, فائنینشیل ہیلتھ اینڈ سوشل ہیلتھ. سوشل میں آپ کے ریلیشن شپس آتے ہیں, آپ کی جاب آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. فائنینشیل ہیلتھ میں آپ کے فائنینسز آتے ہیں. اور جو میں نے آپ کو تیسرا بتایا فزیکل ہیلتھ بتائیے. فزیکل اور مینٹل کی آپ جگہ بدل سکتے ہیں, دوسرے تیسرے پہ لا سکتے ہیں. اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو مینٹلی بھی نہیں ہو سکتے, اور اگر مینٹلی نہیں ہے تو فزیکلی بھی نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ہے, جم جائیں گے دل نہیں لگے گا, واک کریں گے دل نہیں لگے گا. مینٹلی طور پر اسٹرانگ تھے, فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے, پلک جھپکنے سے کتاب لکھ دی. بالکل ایسے ہے. تو مینٹلی اسٹرانگ تھے. تو یہ 5 چیزوں پر پراپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ان کو پراپر پیرالل لے کر چلنا پڑے گا, ان میں توازن پیدا کرنا پڑے گا, ان میں کمپیریزن نہیں لانا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن لاتے ہیں, توازن نکل جاتا ہے, بیلنس نکل جاتا ہے, تباہی کی طرف آ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو میں پریکٹس کرواتا ہوں ان 5 چیزوں کی, کہ ان 5 چیزوں پر پریکٹس کریں. اچھا, یہ جو 5 چیزیں آپ نے کہی ہیں, یہ کیا فکس فارمولا ہے فار ایوری سنگل انڈیویجول یا کپل کے لیے؟ یہ ہر ایک کے لیے انڈیویجولی تو ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مقدار کتنی ہے وہ پھر ظاہر ہے میں ڈیسائیڈ کروں گا نا, جو میرے پاس آئے گا. بالکل صحیح. ہر ایک اپنے لیے بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. سیٹ پیٹرن میں ویسے بیسک جو ہوتا ہے, میں آج یہ اوپنلی بتا دیتا ہوں, بیسک جو سیٹ پیٹرن ہے وہ میں سب کو بتاتا ہوں. جو 7 دن یا 11 دن وہ کر لیتا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیج پہ میں اسے اگلا لے کر چلتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ پنکھ کی طرح ہلکا ہو کر سفر کرتا ہے زندگی. بالکل صحیح. اچھا, جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ, تو عام جو ہمارے جو کامن اس کی پرسیپشن یہی آتی ہے جی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن یا ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے, تو کیا اس کے اندر اور بھی کوئی رشتے آتے ہیں یا آپ کے پاس بھی کامنلی یہی بہت سارے رشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کیا ہے. دوست کا دوست سے رشتہ, باس کا اپنے سبارڈینیٹ سے رشتہ, صحیح, کولیگ کا کولیگ سے رشتہ, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا رشتہ, یہ تو پھر ہے ہی ہے. جی.
गर्ल का लड़की का लड़की से रिश्ता, सही लड़के का लड़के से रिश्ता, ठीक है। यानी ये एक चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है। जी, हम इसको समझते नहीं है, ठीक नहीं समझते, या इसको प्रैक्टिस नहीं करते, इस पर बात नहीं करते, अलग बात लेकिन है। एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है। यानी औरत का औरत से रिश्ता, मर्द का मर्द से रिश्ता, ठीक है। औरत का मर्द से रिश्ता, मियाँ बीवी का जो रिश्ता, ठीक है। इससे हटकर जो चचा ताया, जो हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बहुत जोर दिया जाता है, मैं खुद भी बिलीव करता हूँ, लेकिन इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। खुद आप बाकी लोग सर्च कर लें, जितना मुझे पता है बल्कि मैं इस वो पे बता थोड़ी देता सी हूँ। जरा बताइएगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से मैंने काफ़ी लोगों से इस पे बात बहुत की है, और नुकसान होता है हाँ, इसका। इसके ज़्यादातर लोगों ने नुकसान फ़वाइद बताए। इसके सिर्फ इतने से हैं कि आपके बच्चों को पालने वाले या खिलाने हाँ, वाले, एक उनके साथ खेलने connectivity है वाले, बस, हाँ। एक कलेक्टिव एफर्ट हो जाती है, या रिस्क के हिस्से थोड़े से बढ़ जाते हैं कि बिल दे, ये देगा, ये देगा, ये देगा। बसूरत दीगर कजन्स आपस में नहीं खेल सकते, कजन्स आपस में नहीं बैठ सकते। तो जो लोग इस्लाम ठोंस देते हैं ना हर जगह पर, तो फिर इस बात का भी ख्याल कर लें। जी, तो ये एक एलिमेंट है। तो फैमिली सिस्टम में बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे होते हैं, ख़राब किए जा रहे होते हैं। सही। यानी मेरे पास एक केस आया जिसमें ससुर नहीं बसने दे रहा अपनी बहू को। और क्यों नहीं बसने दे रहा? वो चाहता है कि उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। अल्लाह। सास तो चलो नहीं बसने देती अपने औरत वाले हसद की वजह पर, ससुर नहीं बसने दे रहा। देवर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि बदचलन है। वजह क्या थी? कि देवर की आंख थी उस खातून के ऊपर। अल्लाह। अब क्या करूं मैं सर? ये इशू है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है ना। सर मुझे कल एक, मैं पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं, मुझे कल रात को तकरीबन कोई 1 बजे मैसेज आया। मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट की, तो उन्होंने उस पॉडकास्ट के रेफरेंस से को मुझे 4 मैसेजेस भेजे, 2-2 ढाई मिनट के। अब वो मैसेज सुन के मैं कर कुछ नहीं सका, लेकिन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कश्मीर साइड की एक बहन बेटी का मैसेज आया। वो कहती है कि मैं पिछले 8 साल से शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड मेरा दुबई रहता है। बस ठीक है। अब वो नाजायज़ ताल्लुकात में है, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके दिल करता है उसका तो ख़र्चा देता रहता है, जब दिल करता है ख़र्चा रोक लेता है। अब उसका ये मैसेज था कि परसों का वो पाकिस्तान आया हुआ है, अभी तक हमें शक्ल नहीं दिखाई, वो ये तो कहाँ एक है ना पता सर, नहीं। ये तो ठीक एक सुन के आपके पाँव तले हाँ, जमीन अब निकल गई। वो मैं तो बेचारी- रोजाना सुनता हूँ। अब पाँव से ज़मीन कहाँ पे निकली सफदर भाई? वो रोते हुए कह रही, भाई खुदा का वास्ता है, उनसे मुझे कनेक्ट करवा के मेरा मसला हल करवा दे। मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरे पास यकीन कीजिए तावीज़ करवाए होते हैं सासों ने। हाँ, वो तो एक ठीक है, लंबी कहानी ऐसे है, कई केसेस बिल्कुल। आते हैं मेरे हाँ, पास, कहते हैं सर इसका इलाज भी कर दें, इसका भी बता दें इलाज। इसलिए मैंने पहले कहा स्पिरिचुअल हेल्थ, जी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस आते हैं और फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि ये पढ़ लें या ये कर लें, बहुत एहतियात के दायरे में रहते हुए। जी, जी, अब इससे कई केसेस जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ मुनीर भाई आप ये देखिए, एक शख्स है, उसका पैटर्न 10 साल का पैटर्न चेक कर लें, गुजरात से है। जी, मैं वो अगर सुनेगा तो उसे पता भी चल जाएगा। उसकी बीवी ने सेशन लिया, नाम नहीं रिवील करता। वो हर साल आता है, सही, बच्चा पैदा करता है, यानी प्रेग्नेंट करता है बीवी को और चला जाता है। सही, 10 सालों में उनके 5 बच्चे पैदा हो चले हैं। ठीक है। उनकी तरतीब ही है, ठीक है, कि हर 1.5-2 साल बाद उसने प्रेग्नेंट करना है बीवी को, 1-1.5 माह के लिए रहता है और चला जाता है। सही। अब वो जो खातून है वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, वो शुगर की पेशेंट है, आई साइड उसकी वीक हो चुकी है, पाँव पर उसके वो जो है वो वर्म बनने लग गए हैं, वो यानी शुगर की वजह से या कुछ किसी भी वजह से, ठीक है। जोड़ों में उसका दर्द शुरू हो गया, अर्थराइटिस उसे कह लीजिए कुछ भी। यानी 44 ईयर्स उसकी एज है उस खातून की, और 44 साल की उम्र में 74 साल वाले मसाइल हैं, और मे भी 74 साल में भी शायद ये मसाइल ना होते हों, और सिर्फ वो ये काम करता है। सही। और हमारे यहाँ मैं एक जुमला, मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाई थी, आधी बेवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उन खातीन के लिए जो कश्मीर में हैं, जी, मकबूजा कश्मीर में, जिनके शौहरों को, जिनके खामंदों को ले जाकर या तो कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, या कैद में डाल दिया जाता है, और जिनकी शादी हुई हुई होती है और उन्हें पता नहीं होता कि इनका शौहर जिंदा है या नहीं जिंदा, और वो उनके सहारे बैठी हुई हैं कि अगर कभी भी आ गए शादी कर दे तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल। उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आधी बेवा। सही। पाकिस्तान में भी आधी बेवाओं की तादाद करोड़ों में है। बेशक ऐसी ऐसे ही। अब आप अंदाज़ा कीजिए वो जब तकलीफ लेकर आती है ना, और फिर वो जो बाहर शख्स है वो बाहर चक्कर चला रहा है। हाँ हाँ, वो उसका कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कहे कि जनाब मैं तो, कोई मेरा ऐसा मामला नहीं है। 1% हो सकते हैं, जी, ऐसे ही है, उनकी कसम तो दी जा सकती है, 99% की कसम नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, सर मुझे उनके पास भिजवा दें, सर कुछ ऐसा पढ़ने को बता दें कि उनके पास हम चले जाएं, सर वो खर्चा देने लग जाए, सर वो अपने बच्चों का ख्याल करने लग जाए,
اور دوسری شادی کے کیسز تو بے تحاشا آتے ہیں. سر اس نے دوسری شادی کر لی, مجھے طلاق دینا چاہ رہا ہے, یا دوسری بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو, اسے طلاق دو, پہلی بیوی کو طلاق دو. سر میں صرف چاہتی ہوں اس کا نام جڑا رہے. یہ ایسے مطلب اس سے بھی ورسٹ کیسز, ایسے کیسز جن کا اچھا آپ کہیں گے کہ کیسے کیسز آتے ہیں. بھائی ظلم کرتا رہا بہن پر, اور ظلم کی کون سی قسم ہو سکتی ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ اکبر. بھائی ظلم کرتا رہا 8 سال تک, اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, اور وہ باقاعدہ تھریٹ کرتا تھا اگر کسی کو بتایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. اب اس کا اندازہ کر لیجئے کیا ہوگا. اب ایک اور کیس میں آپ کو بتاؤں, آپ کہیں گے کہ وہ جو آپ نے کہا نا پاؤں تلے زمین نکلنے والی بات, مجھے آج بھی یاد ہے. میں ان دنوں واک کر رہا تھا, ایوننگ واک کر رہا تھا, اور میں 7 سیشن لیتا, کال سیشن پہ تھا. تو ایک بچی کی روتی بلکتی ہوئی آواز جب سیشن سٹارٹ ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹے آپ پہلے سانس لیں, تسلی سے بات کریں. کہتی سر میں تو مرنا چاہ رہی تھی, بس میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو میں نے آپ کا سیشن بک کیا. میں نے بڑی منتیں کی آپ کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے, مجھے فوری اپوائنٹمنٹ چاہیے. سر مجھے بتائیں میں کیا کروں. اب سین یا اس کا کیا مسئلہ کیا تھا. ایک شخص جو کہ جس نے پہلے اس کی والدہ کے ساتھ تعلق بنایا اور اس کی والدہ کی علیحدگی کروائی, والدہ کی طلاق کروائی. ٹھیک ہے. وہ 21ویں گریڈ کا آفیسر تھا, اور یہ خاتون اس کے پاس اپنا کیس لے کر, اپنا کوئی معاملہ لے کر گئی تھی کہ میرا یہ مسئلہ ہے زمین کا یا کچھ بھی ایسا. اس کے ساتھ اس نے تعلق اس کا بن گیا. اب اس کی بھی غلطی, اس کی بھی غلطی, جس کی بھی مرضی غلطی, وہ تو ایک الگ میٹر ہے. اس نے اس کی علیحدگی کروائی. ٹھیک ہے. علیحدگی کروانے کے بعد اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گا. نکاح نہیں کیا. صحیح. نکاح نہیں کیا. 7 سال سے اس کی والدہ کے ساتھ تعلق میں ہے, اور اب اسی کی والدہ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرواؤ. استغفر اللہ. مطلب یہ انسان کے روپ میں بھیڑیے موجود ہیں. اس سے بھی ورسٹ کیسز ہیں, ورسٹ کیسز ہیں. اور آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو آپ کو بھی اس بات کا شکار بنا سکتے ہیں. آپ کو بھی خیال میں لا کر آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ نشان عبرت بنا دیں, آپ پر کوئی الزام لگا دیں, کچھ بھی آپ کے ساتھ کر دیں. حسد کی مقدار اتنی موجود ہے. یہ تو میں آپ کو ایک ریلیشن شپ کا مسئلہ بتا رہا ہوں نا. حسد کو لے کر اتنے ایسے معاملات موجود ہیں کہ لوگ آتے ہیں, وہ بلک رہے ہوتے ہیں, وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ سر کچھ بتا دیں ہمیں, کچھ پڑھنے کو بتا دیں, سر کچھ یہ ہمارا یہ کاٹ کروا دیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دوبارہ وہی سسٹم آ رہا ہے, یہ دوبارہ وہی اس پڑھی لکھی سوسائٹی میں یہ وہی جادو, یہ وہی اثرات, یہ وہی نحوستیں, اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے شاید قدرت کو پتہ تھا کہ انسانوں نے باز نہیں آنا, تو آخری 3 کل پڑھنے کے لیے کہے گا. بالکل ایسے ہی. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بالکل ایسے ہی. قل اعوذ برب الناس. اب یہ جو قل اعوذ برب الناس والی بات شروع ہوتی ہے نا, یہ آخر تک کہاں تک جاتی ہے؟ من شر الوسواس الخناس تک جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. وسوسے سے بھی, اور ان کی جو جتنا بھی خناس ان کے ذہنوں میں بھرا اس تک جاتی ہے. تو یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے, اور ریلیشن شپ اور اس قسم کے ہزاروں معاملات ہیں. یعنی اتنی چیزیں بیان کرنے کو کہ اس پر ہم کوئی 200-250 پوڈ کاسٹ کر لیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو اتنے زیادہ مشکل حالات میں سے نکل کے آئے گا, اس کو یہ جو آپ 5 پریکٹسز کا بتا رہے ہیں, وہ تو مطلب اس سوچ سے یا اس صدمے سے ہی باہر نہیں نکل پائے گا, تو وہ اس طرف کس طرح آئے گا؟ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا, کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ کہتے ہیں کیسے آئے گا؟ جب وہ چاہے گا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا, اسے بتایا جائے گا کہ یہ کریں, پھر وہ ظاہر کنیکٹڈ رہتے ہیں. اسپیسیفک پریکٹسز اگر انسان کرتا رہے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم توقعات پالتے ہیں, اور توقعات ہماری سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں. میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. تو ارادوں کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میں نے کام کیا تو وہاں ارادہ ٹوٹ گیا. میں نے جو آپ پر توقع باندھی, اس توقع کے باندھنے کے بعد جو مجھے نقصان ملا توقع کے ٹوٹنے کی وجہ سے, وہی تو مجھے خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جس سے توقع ٹوٹ رہی ہوتی پھر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی آپ جانا مشرق میں چاہتے ہیں, اور آپ ایسی بس میں بیٹھے جو مغرب لے کر جا رہی ہے, مشرق میں نہیں جا سکتے. بالکل ایسی ہے. سمت ہی غلط ہے آپ کی. بلکہ سوال ہی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اکثر ہمارے یہاں ریلیشن شپ میں یہ کہ ان کو فکس تو چاہیے کہ یار ہاں میرا یہ مسئلہ ہے, اس کا حل کر دیجئے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نہیں جی دل بھی ادھر ہی لگا کے رکھنا جہاں سے دھوکہ ملا ہے. تو اس کے اوپر بھی بہت سارے اگر خاص طور پہ ینگ بچوں کا دیکھیں آتے ہیں کہ صرف یہی شخص چاہیے, ہاں ہر حالت میں چاہیے, ہر حال میں اور اس کی برائی بھی پتہ ہے, برائی بھی پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, ہر حال میں چاہیے.
कुछ केसेस में मैं बता देता हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है, ये ठीक हो सकता है जी रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए से या डार्क साइकोलॉजी की कुछ प्रैक्टिसेस या कुछ पढ़ाई करके, क्योंकि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। बेशक। और ताल्लुक़ की खूबसूरती ये है कि दो तरफा ताल्लुक़ हो, वन साइडेड ना हो। वन साइडेड ना हो। ताल्लुक़ की ये खूबसूरती है। बिल्कुल। वन साइडेड होगा तो उसकी कुछ लज्जत नहीं है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं ताल्लुक़ समझता ही इसे हूँ कि जो दो तरफा हो, एक तरफा ताल्लुक़ है ही नहीं, जी वो कुछ और हो सकता है, एक तरफा ताल्लुक़ नहीं होता। उसमें फिर आपको बहुत एफर्ट पुट करना पड़ती है, आसाबी तौर पर आपको बड़ा मजबूत होना पड़ता है। जी। अगेन स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा जो मैंने कुलिया बताया। अगेन आपको रूहानी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, एक कमज़ोर शख्स किसी ताकतवर को कैसे पछाड़ सकता है? नहीं हो सकता। ताकत वो आपसे ताकतवर है, पैसे के हिसाब से ताकतवर ना हो। जिस पर्सपेक्टिव में आप उसे सोचते हैं उस पर्सपेक्टिव में वो आपसे ताकतवर है। सही। आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत में आपसे ताकतवर है, या उस जज्बे में आपसे ताकतवर है। आप उसके पीछे हैं, वो आपके पीछे नहीं है। तो जज्बाती तौर पर ताकतवर होना पड़ेगा। ये ताकतवर कैसे होना, ये ज़ाहिर है कि आपको प्रैक्टिसेस बताई जा सकती हैं। फिर पढ़ने का बड़ा अमल दखल है। अल्लाह वाहिद है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल सकता है। बेशक ऐसे ही है। यानी ये वाहिद ऐसी चीज़ है मोहब्बत जो सिर्फ कुदरत के हाथ में है। अच्छा, आपने बड़ी दफ़ा जिक्र कर लिया पिछले 4-5 मिनट में कि पढ़ना पड़ेगा और आपको जो है ना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो क्या कोई पीर बाबा का भी आप यहाँ पे वो रूप हल्का रखते फुल्का, हैं? वो उन लोगों के लिए जिन लोगों को वाक़तन ज़रूरत महसूस हो, ठीक है। क्योंकि हर एक का दायरा कार है ना। तो उस क्या मैं दायरा कार सफदर से साहब बाहर को नहीं एक जाना पीर चाहिए। बाबा कह सकता हूँ? नहीं पीर बाबा ने, मैं अभी नहीं चाह रहा ये ठीक है। शायद किसी वक्त मतलब जाकर आगे ये- जाके हाँ, वो कराची वाले बंगाली बाबा बनने नहीं का वो नहीं, इरादा वो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के तस्बीहात पर मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है। वजह ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के बगैर दिलों को सुकून नहीं बेशक मिलता। ऐसी है। ये तयशुदा है, ये मैंने तो नहीं कहा, बेशक ऐसी है। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये खालिक कह रहा है। बेशक। और जब खालिक कह रहा है तो मखलूक को इनकार करने की जरूरत नहीं है। बेशक ऐसे ही। तो मखलूक को इनकार करने की जरूरत नहीं है तो फिर इकरार क्यों नहीं करती? तो मैं तो इकरार कर रहा हूँ कि बिल्कुल अल्लाह के जिक्र के बगैर दिलों को सुकून नहीं नहीं है। है। मेरे दिल में सुकून होगा तो मैं सुकून दे सकूंगा। ऐसे ही है। मेरे पास ही सुकून नहीं है तो मेरे पास कोई आकर बैठेगा तो उसे सुकून कहाँ से मिलेगा? आपने अक्सर देखा होगा किसी के पास जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा अच्छा है यार, दोबारा उससे मिलने चलें, आपका वाकिफ नहीं होता, मिलना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते कि हैं, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव आपको एनर्जी अट्रैक्ट होती करती है। ये तो अब आगे हमने डिसाइड किया ना, उसका ऑरा है, जी, उसकी जी, पॉजिटिव जी, एनर्जी है और ये और सारी चीज़ें। कुछ लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं यार इससे नहीं मिलना भाई, ये कौन है, कहाँ से उठा के लाओ, ये तुम्हारा दोस्त है। हालांकि वो कोई गलत बात उसने आपसे नहीं की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नेगेटिव ऑरा होता है। हमारा ऑरा ना 84 इंचेस का होता है। ये साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है, इसको सर्च कर लीजिएगा, कुछ 2-4 इंचेस आगे पीछे हो जाएं, मुझे माफ़ी दे दें। 84 इंचेस का होता है। 84 इंचेस के दायराकार में आपके इर्द गिर्द आपकी मामला आता है। अब इसको बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? क्या कुलिया आपके पास? बहसीयत इंसान और बहसीयत मुसलमान मेरे पास तो एक ही कुलिया है कि खालिक से जुड़ जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जितना की भी बात। हो सकता है खालिक से जुड़ जाए और खालिक का जो महबूब है उससे जुड़ जाए। एक काम ऐसा है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं और जो अल्लाह भी करता है और इंसान भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं। वो काम है दुरूद पाक का, जिक्र का। ठीक है, ये अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजा करो। ठीक है, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? मैं ये कर सकता हूँ ना, और कुछ हो ना हो। फिर एक दुआ मुझे सिखाई गई थी, बताई गई थी ना, वो दुआ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सही। मुझे हदीस से मुबारक है उस दुआ के ऊपर जी। कि दुनिया की सबसे बड़ी दुआओं में से, कायनात की बड़ी दुआओं में से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आफियत में रखे, अल्लाह ताला से आफियत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़वा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। बिल्कुल। बस ये है। और तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, और तो फिर ये तो वो रहा है कि चल पड़े कोई, लेकिन ये पीर बाबा वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। सही। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, मैं उन्हें रेफ़र कर देता हूँ कि आप फ़लाँ के पास चले जाएं, फ़लाँ के पास चले जाएं। मैं जिस हद तक बात कर सकता हूँ वो मैं बात करता हूँ। क्योंकि मैंने इस वजह से ये पूछा आपसे सवाल टिपिकली, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ये समझते हैं कि अच्छा जी सफदर साहब के पास हम जा ही इसलिए रहे हैं कि या ये जादू किसी का जो हुआ उसको काट कर दें या जादू कर दें। अच्छा, करने वालों में से तो नहीं है, हाँ। जो सीधी सी बात है। काट वाला जो मामला है वो भी बड़ा सख्त और मुश्किल मरहला है। वो ऐसे लोग तो ज़ाहिर है हम साथ जुड़े हुए होते हैं कि जो मौजूद होते हैं, जिनके पास हम भेज देते हैं या बता देते हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि वो खुद कर ले इंसान, तो कॉमन पर्सन के तौर पे कॉमन पर्सन के तौर पर हो सकता है ना। यानी जैसा नजर के बारे में रुकिया कहा जाता है कि रुकिया आप कर लें, ठीक है, वो घर में कोई भी कर सकता है, पढ़ नहीं सकते। अब नज़र के बारे में देखें, कहते हैं जी पाकिस्तानियों को सिर्फ नज़र लगती है।
हाँ लगती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जी, है, बिल्कुल लोग ऐसे, बुरी नज़र से देखते हैं। कैसा ऐसे हो जाता है कि 2 बच्चों को लेकर मियाँ बीवी जा रहे हैं, शादी में जाते हैं, वापस आते हैं चारों बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि हाय वो अच्छा औरतें देखने का अंदाज उनका ये हाय नहीं वे किड्डी सोहनी लगती पई। अब ये जो किड्डी सोहनी लगती पई है इसमें जेलसी शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कहते हैं जी कि अच्छा फलां को तो नज़र लगी, फलां को नज़र क्यों नहीं लगी, इमरान खान को नज़र क्यों नहीं लगी। इमरान खान को नज़र लगी तो 804 बना बैठा है। कुछ उसके करतूत भी होंगे, कुछ अमल भी होंगे, 804 कैदी नंबर 804 बना बैठा है। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ कहते हैं जी नवाज शरीफ को क्यों, नवाज शरीफ कितने साल बाहर गुजार के आया। आप पूरे के पूरे स्नेरियो को देखें, नज़र बरहक है, क्योंकि बरहक है, बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नज़र बरहक है, ये इंसान को कब्र की मिट्टी तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कौन होता हूँ इसको चैलेंज करने वाला। हाँ, ये ज़रूर इस पर डिबेट की जा सकती है कि मुख्तलिफ माशरों में या मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। अब जिस तरह खास तौर पर अगर आप यूरोप की बात करें, वहाँ सर साथ वाले घर में क्या हो रहा है किसी को कोई कख फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ वो भैया आपके दूर दराज के रिश्तेदार छोड़ें, आपके फैमिली में कहीं पे कुछ हो जाए खबर पूरी। एक फुफ्फो होती है लाजमी, आप वो लड़का भी हो सकता है, लड़को जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये चल रहा है, पता होता है। तो उस वजह से वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा है नेगेटिव। तो ये वाला अमल है, ये प्रोसेस है। इसी वजह से कहा गया, ये हदीस 1400 साल पहले बता दिया गया था बेशक कि अपने इरादों को छुपा कर रखो जब तक वो ज़ाहिर वाज़े नहीं हो जाते। ठीक है, इमारत नहीं बन जाती, मफहूम बता रहा हूँ, इरादों को छुपा कर रखो। क्योंकि मैंने खुद ये बात नोट की, जब मैंने किसी को ये बात बता दी, किसी से शेयर कर दी ना बात ओपनली कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो काम अगर हो जाए तो डिले से होता है। बिल्कुल ऐसे सर, मैंने साथी तौर पे मैंने भी एक्सपीरियंस किया। बाज़ दफ़ा नहीं होता और बाज़ दफ़ा वो डिले से होता है। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, कारोबार उनके बड़े शानदार चल रहे होते हैं, घर में सुकून नहीं होता। ऐसे ही है, घर में सुकून होता, कारोबार तबाह हो जाता है। तो मिक्स अप सी सिचुएशन। एक शख्स आया, बड़ी अजीब बात है, शेयर कर देता हूँ, पता नहीं कितना वक्त रह गया हमारे पास। जी करें कोई मसला नहीं। कहने लगा सर बरकत नहीं आती घर में, कारोबार की डील नहीं हो पाती। पता नहीं मेरे जहन में क्या बात आई, मैंने कहा यार बहन का हिस्सा दिया है, बहन है आपकी। मैंने ये सवाल पूछा, डायरेक्ट सवाल पूछा, बहन है आपकी? अच्छा वैसे ही आगे दिल में वैसे मेरे जहन में आया। मैंने कहा बहन है आपकी? कहता जी। मैंने कहा उसका हिस्सा दिया है? खामोश हो गया। कहता जी सर वो हाले हिस्से थे करने ने। तो मैंने कहा किस चीज़ में हिस्सा देना है उसे? कहता घर में, जिस घर में हम रहते हैं। सर वो टूट जाएगा तो मैं कोशिश करके ना, चाहे किसी से उधार पकड़ लो, जो उसके पैसे बनते हैं ना पैसे दे दो। कहता सर ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कोई और पढ़न नहीं दस दियो। फैसलाबाद से था बंदा, पंजाबी में बात कर रहा। मैंने कहा यार कुछ और पढ़ने को भी बता देता हूँ, लेकिन ये काम अगर मेरे जहन में ऐसी बात आई है, कर लो यार, क्या जाता है। और अगर उसकी बहन की कोई औलाद है, कोई बेटी है, तो उसके लिए तोहफे लेकर जाना, कुछ चीज़ लेकर जाना, और जाके कर लो यार काम। सही। उसने कहा अच्छा जी। वो चला गया। मुझे 6 माह बाद फ़ोन आता है, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आए आप मिलने? ये कहते सेशन नहीं लेना सर, वैसे मिलना है। मैंने कहा यार सेशन के बगैर मैं नहीं मिलता ना, टाइम के बगैर नहीं मिलता। कहते सर मैं थोड़े सेशन के पैसे देंगा, इंज करांगा इंज करांगा। मैंने कहा नहीं फिर भी आप टाइम लेकर आए, क्योंकि मैं तो एहतियात ज़ाहिर अपनी करना होती है। उसने टाइम लिया, आया, उसने मिठाई का टोकरा उठाया हुआ, फल का टोकरा उठाया हुआ, साथ में उसके बंदा और वो ऑफिस में आया। कहता सर मैंने बड़ा शुक्रिया आपका अदा करना था। मैंने कहा वो कैसे? कहता आपको याद होगा आपने फ़लाँ बात की थी, आज 6 माह हो गए हैं सर, विद इन 2 months मेरी ऐसी डील्स हुई हैं कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और मैंने आपकी बात मेरे जहन में बैठ गई थी और मैंने पैसे पकड़ के अपनी बहन का 1.5 करोड़ दिया हिस्सा। क्या बात है, क्या बात है। उसको 1.5 करोड़ दिया तो उसने अपना घर लिया, वो अपने घर में सुखी है। पहले वो किराए के मकान पर रह रही थी, उसको मैंने उसके पैसे दिए, उसकी चीज़ दी, और फिर बरकतें आना शुरू हो गई। क्या बात। अब सर मैं अपनी बहन, मेरी एक ही बहन है, आपने बड़ी मेहरबानी की मुझे बता दिया, मैंने अपनी बहन और उसकी 3 बेटियां, तीनों बेटियों का जो सारा खर्चा है मैं उठाता हूँ। उसको शौहर को मैंने कह दिया तुम अपना जो करना, इनका मैंने खर्चा मैंने उठाना है। क्या बात है। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि इनका जो खर्चा मैंने उठाया ना, बरकतें आती हैं। तो ये छोटे छोटे अमल हैं, छोटे अमल हैं, लेकिन इनके अंदर वाकई जो है ना वो बरकत है। बस ये वाली बात है। बिल्कुल ऐसे। सर चीटिंग का हमारे जो ख़ास तौर पे यंग ब्रीड है आजकल, चीटिंग का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। एक बच्चा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, ठीक है, और अरसा दराज से है। इसको किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि ये केसेस तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आपके पास आते होंगे, खासतौर पे जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मौक़े ज़्यादा होने की वजह से चीटिंग ज़्यादा है। ठीक है, यानी आपका पार्टनर कहीं और बैठा है, आप कहीं और बैठे हैं, आप इससे भी चैट कर रहे हैं, इससे भी चैट कर रहे हैं, इससे भी चैट कर रहे हैं, तीनों को नहीं पता,
उनको आपस में नहीं पता, आपको आपस में नहीं पता। चीटिंग है क्यों, ये कॉन्सेप्ट ये है ना। बेसिकली रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है, रिलेशनशिप की बुनियाद क्या, अगर तो निकाह है, जी मुआशरती उसूलों पर मबनी ताल्लुक है, जी, तो फिर अगर कोई किसी और से बात कर रहा है तो चीटिंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की बुनियाद मुआशरती उसूलों पर मबनी नहीं है तो फिर उसे चीटिंग नहीं कहा जा सकता, उसे कुछ और कहा जा सकता तो है। वैसे ही उसे मतलब चॉइस कहा जा सकता है कि वो अपने लिए चॉइस तलाश कर रहा है कि मैं इसके साथ रहूं, इसके साथ रहूं, इसके साथ रहूं। ठीक है। हाँ, अगर वो ये दावा कर रहा है मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, अगर वो दावा कर रहा है मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तीसरे के साथ फिर दावा कर रहा है, तो ताल्लुक में, रिलेशनशिप में फिर ये चीटिंग है। मुआशरती उसूलों से अगर आप हट जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेशनशिप को, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये ही। बात तयशुदा है। अब अगर आ जाएं आप इस रिलेशनशिप यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की, अब स्पेसिफिकली आप बात कर लें, चीटिंग इस वजह से है कि आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट दोनों ने भी नहीं की और इंडिविजुअल ने भी नहीं की हुई। सही। कमिटमेंट इंडिविजुअल्स की होती है, दोनों की नहीं होती। आप जब तक कमिटेड नहीं होंगे अपने पार्टनर के साथ, जी आपके पास चीटिंग के मौके आते रहेंगे और आप करते रहेंगे। कमिटमेंट अब क्या है, कमिटमेंट ये है कि आपके पार्टनर से बेहतर आपको अगर कोई शख्स मिलता है, माली लिहाज से, चेहरे के लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, किसी भी लिहाज से, मुआशी लिहाज से भी, फाइनेंशियली भी, अगर आपके पार्टनर से बेहतर भी आपको मिल रहा है फिर भी आप उसकी जानिब नहीं जा रहे, तो इसका मतलब आपने इंडिविजुअली कमिट किया हुआ है, कमिटमेंट है आपकी उसके साथ, वरना मौके तो मिल रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मौकों को हासिल करने वाला चीटिंग कर लेता है, चीटर कहलाता है, और मौकों को छोड़ देने वाला वफादार कहलाता है। ऐसे ही। ठीक है। और वजह सिर्फ और सिर्फ इसकी ये है कि हम ज्यादा की चाह में हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि तुम्हें ज्यादा की हवस ने तबाह कर दिया। बिल्कुल। मैं एक औरत पर इक्तफा नहीं करना चाहता, मैं कुछ पैसों पर इक्तफा नहीं करना चाहता, सही। मैं अपनी जिनसी लज्जत को एक पार्टनर के साथ नहीं जोड़ कर रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जिनसी रवैयों में मेरे बेश बहा जायके शामिल हो जाए, जी खातीन भी और मर्द भी। ये और ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जी, है। बिल्कुल ऐसे। निम्फोमैनिक एक टर्म है, पूरी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आपने इस पर शायद सुना भी हो या बात भी की हो या आपको आइडिया हो कि एक शख्स के साथ रहा ही नहीं जाता। हाँ, एक औरत से एक मर्द की या एक मर्द से एक औरत की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। जी तो जब तक इन छोटी छोटी बीमारियों का, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन या इलाज नहीं करवाया जाएगा, तो फिर ये चीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम जितना सोचते हैं उतना हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं। तो सोच के जो दर्जात हैं उनको पहले तय करना पड़ेगा, कितना दर्जा रखना। बिल्कुल सही। बसूरत दीगर चीटिंग के तो मौके हैं, मैं यहाँ से निकलूँ तो हज़ारों खातीन हैं, मैं मर्द हूँ, हज़ारों खातीन हैं, मैं औरत हूँ तो हज़ारों मर्द हैं। इवन दो मैं पार्टनर्स को रिलेट करते हुए ये बात मतलब कह देता हूँ, मियाँ कहता जी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की है सर उसने, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। कपल काउंसलिंग का जब होता है, बीवी कहती मैं इसके साथ बैठ नहीं सकती, इसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की है। मैंने कहा जब आपने उजला उरूसी में पहली रात गुजारी थी, दूसरी रात गुजारी थी और कई माह तक आपका हनीमून पीरियड चलता रहा, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ थी? एक दूसरे के कपड़े उतार के आपने साइड पे कर दिए, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आई। जब आप एक दूसरे से अब आप चलना शुरू हुए हैं, जिंदगी आगे बढ़ना शुरू हुई है, मामलात में खराबी आई है, तो मामलात को ठीक करने के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। बिल्कुल सही। सेल्फ रिस्पेक्ट तो अनाउन के लिए, नाउन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? ये मेरा कुलिया, लोग गलत भी हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक, वैलिड बात ठीक है? कही आपने। अब सेल्फ रिस्पेक्ट औलाद को सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में डाल देते हैं, प्राइवेसी के चक्कर में डाल देते हैं, उनसे पूछते नहीं है, उनसे उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। बाप शर्म के मारे डिस्कस नहीं कर सकता। जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो इजाफी बाल हमारे जिस्म में आते हैं जिनको काटना जरूरी होता है, मुझे मेरे नाना अबू ने गाइड किया था। मुझे मेरे नाना अबू ने गाइड किया था सही कि बेटे ये इस तरह से होता है, इसको इस तरह से डील करना है। लड़कों में नाइट फॉल का मसला होता है, मुझे नाना अबू ने बताया कि नाइट फॉल का इशू होगा तो नमाज इस अंदाज से पढ़नी है। क्या कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी औलाद को इस तरह से बताते हैं? बिल्कुल सही है। माएँ तो चलें बच्चियों को बता देती हैं कि स्पेसिफिक डेज में, वो भी बहुत कम हद तक, ठीक है। तो ये बताया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन को और नज़र से देखा जाता है, नहीं, गाइड किया जाना चाहिए। सही। उन्हें बताया जाना चाहिए ये मसाइल हैं, इन मसाइल को बेटे तुमने इस अंदाज से हल करना है। जब ये सारी बातें अगर दोस्त बताएंगे तो दोस्तों ने तो फिर और अंदाज से बताना। बिल्कुल ऐसे ही, वो लज्जत वाली साइड पे चले जाएंगे, फिर वो लज्जत वाली साइड पे, लस्ट वाली साइड पे चले जाएंगे मामला। तो जो बुनियादी बात है जिसको मैं कंक्लूड करूंगा, पेरेंट्स को एक बात तो ये तय कर लेनी चाहिए, बच्चों को बता देना चाहिए बेटे कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं कभी भी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चेक कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं कभी भी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन
खंगाल सकता हूँ और कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पासवर्ड है तो काम खराब है। हाँ, दूसरों के लिए पासवर्ड हो, अपनों के लिए हाँ, पासवर्ड बिल्कुल ना ऐसे ही, हो। ऐसे ही। ठीक है, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जी, है। ऐसे ही। हाँ, जिस तरह से मेरा काम है अब काउंसलिंग का, चीज़ों का, तो मेरे पास प्राइवेसी के मैटर्स हैं, तो मैं तो अगर रखूं फ़र्ज़ करें तो मुझे तो रखना बनता है। लेकिन अगर मेरी मांग है कि बेटा खोल कर दो, तो मैं उसे खोल कर दूं ना भाई। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसी कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, अनाउन से होनी चाहिए। जी। नाउन से कोई प्राइवेसी नहीं है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ सफदर भाई के जो प्यार आपको माँ बाप से, बहन भाइयों का, जो अपना उसमें क्लोज फैमिली है आपकी, उससे मिल सकता है, वो बाहर से नहीं मिल सकता सर। बच्चे डरते हैं जी कि पेरेंट्स जज करेंगे। हाँ, ये पेरेंट्स का भी कसूर है, बच्चों का भी कसूर है। बट क्यों कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो माँ बाप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने ऐसे क्यों किया। याद रख लीजिए, अगर आप उन पर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो प्यार कोई दूसरा दे देगा। कोई दूसरा और जब कोई दूसरा प्यार देगा तो वो इन्वेस्ट और कर रहा इस मौके का फायदा उठाने के लिए उठाएगा। लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। वो प्यार का फायदा उठाएगा जो प्यार देगा, जी। और सूद समेत वापस बिल्कुल ऐसे देगा। ऐसे और जब सूद समेत वापस लेकर संभालना फिर औलाद को पड़ेगा, माँ बाप को पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अक्सर तलाक याफ्ता जो बच्चियाँ होती हैं वो रोती हैं, सर हम डरती हैं, या तलाक के नज़दीक होते हैं, हम डरती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें संभाल नहीं सकेंगे, या वो बातें ना सुनाएं। वो कहते हैं कि जनाजा आना चाहिए जनाजा तुम्हारा। आना चाहिए, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बहुत गलत बात है। आप मुर्दा को कबूल कर सकते हैं, जिंदा को कबूल जिंदा को नहीं नहीं कर सकते। कर सकते। ये एक नेगेटिविटी ऐसी हमारे माशरे में पाई जाती है, ये हिंदुआना रस्में ऐसी पाई जाती हैं कि बस शौहर के साथ मर जाना है, हाँ, शौहर आपकी हड्डियां तोड़ दे, और फिर शौहर भी दिमाग उनका ख़राब कर दिया जाता है कि तुम मजाजी खुदा हो। मजाजी खुदा का मतलब ये था, तुमने इसके नानो नफ़के की जिम्मेदारी उठानी है, उठानी है, तुमने इसके हर चीज़ का ख्याल करना है, बिल्कुल। ये तुम्हारी रियाया है। और हर शख्स अपनी रैयत के बारे में जवाब दे, हदीस मुबारक का मफहूम है। बिल्कुल। रियाया में अच्छे भी लोग शामिल होंगे, बुरे भी लोग शामिल होंगे। और बीवी अगर सिर्फ तुम्हारी रियाया है तो बीवी के अंदर अच्छी आदत भी हैं, बुरी आदत भी हैं, तो तुम्हें उसकी अच्छी और बुरी आदत का ख्याल करना पड़ेगा, बेशक। उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, तुम्हें अपना बर्दाश्त का मादा बड़ा करना पड़ेगा। ये तो हम कर नहीं रहे। हम कहते हैं ये हमारे पाँव धो हाँ, बिल्कुल धोकर ऐसे ही पिए। है, ऐसे ही है। तो ये एक मसला बहुत वही आपने जो common बात है। की ना कि लव जो है टू साइडेड होता है, वन होना साइडेड नहीं चाहिए। है। तो पेरेंट्स कोशिश करें, प्राइवेसी वाले चक्कर को निकाल दें, औलाद को रोजाना बिठाएं, उनसे उनके मसाइल पूछें। वाज़े तौर पर पेरेंट्स बता दें कि अगर बेटे किसी से मोहब्बत हो, कोई अच्छा लगे तो हमें बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी शादी करेंगे। सही। टाइमली शादी कर दें। कुछ लोग कहते हैं जी कि पता नहीं है कैसे निकलेंगे। अच्छा, जिनका वो तो आपको दूसरे पता को नहीं होता है, पता, जिनका आपको पता होता है उनका आपको पता चल जाता है कैसे निकलेंगे। बिल्कुल। ये छोड़ दें। 26 साल बाद तलाक हो जाती है। 66 साल की खातून आई अपनी 5 बेटियों को लेकर अल्लाह, कि तलाक हो गई सर। 4 बेटियां शादीशुदा थीं, 1 बेटी गैर शादीशुदा थी, लेकिन वो किस अजियत में होगी। बिल्कुल तो कोई कुलिया नहीं है। इसलिए जिसको जो पसंद है, एक तो ये कि छान फटक कर देखभाल कर शादी कर दें उसके साथ। सही। प्राइवेसी कोई चक्कर नहीं है, कोई मानी नहीं रखती, उसका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसको तवज्जो दें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट तवज्जो सबसे जब important तवज्जो है। देंगे तो मेरा ख्याल है बस। बच्चों को भी प्राइवेसी वाला जो उनके दिमाग में Element भी रहेगा भूत है ना, ही वो रहेगा ही नहीं। रहेगा नहीं। अक्सर मैंने देखा है, बाकी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि अब पेरेंट्स और पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है ये बेहतर करने के लिए लोग एफर्ट पुट कर रहे हैं। जी, पेरेंटिंग लोग सीख रहे हैं। अब बाकी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो लोग एफर्ट पुट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। माँ बेटी, बाप बेटा, ये हल्के फुल्के दोस्त बन रहे हैं। जी, हल्का फुल्का दोस्त होना भी ज़रूरी है और शर्मो हिजाब होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अगर इतनी दोस्ती ना होती या इतना प्यार ना होता, तो मैं बहुत बड़ी मिसाल देने जा रहा हूँ, तो रसूलुल्लाह को ना कहा जाता कि सजदा लंबा कर दो। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे। औलाद थी ना, पीछे नवासे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अलग बात है कि बड़ा मकाम है, हाँ, तो उसी निस्बत से लेकिन ख्याल वो कर सिखाया भी गया ना, हमारे लिए तो सिखाया सीख भी- है ना हमारे इसमें। लिए सिखाया गया, हमारे लिए बताया गया। फिर एक और बात कही गई, यानी इतनी इतनी बातें हैं कि मुलाजिम का हुकूक, नौकर का हुकूक, गुलाम का हक क्या बताया गया कि अगर कोई गुलाम, कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ भी है तो हमारे लिए तो मिसाल इसमें मौजूद है ना। सही। 70 मरतबा भी गलती करे, 70 अरबी में इसलिए कहा जाता है कि ला तादाद, जी, तो उसे माफ़ करो। और हमारे यहाँ अगर बीवी गलती कर ले, औलाद गलती कर ले, तो थप्पड़ मार मार के उसका बुरा हाल कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चे इस वजह से भी पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं कि माँ सारी ज़िंदगी डराती रहती, तेरा प्यो आएगा तो उन्हें दसाएंगे। वो प्यो आंदा कुछ भी नहीं करता, हाँ, विलन लेकिन बनाया हुआ है वो विलन बन जाता है। हालांकि बाप सारा दिन इस चक्कर में रहता है कि औलाद की सर देखिए, एंड ऑफ द डे अगर एक सिर्फ
एक जिस्म की अगर बात हो तो उसमें तो मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है ना इतनी तगदो बस करने इतनी की। सी बात, अगर मैं अपनी जाती बात करूं तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो मसला हल हो गया। बिल्कुल मैंने अपने जुड़े हुए लोगों का ख्याल करना है। हम ये चार मर्द यहाँ पर अगर कोई बात कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, कोई मसला कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और हमें अगर विलन बना दिया जाए तो ये बड़ी ज्यादती है। खैर आखिर में जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वो ये, अपने रिश्तों को तवज्जो दीजिए, जी अपने चाहने वालों को तवज्जो दीजिए। जो आपको चाहता है उसकी कदर कीजिए। आप अगर उसे बराबर नहीं चाह सकते तो उसकी चाहत की कदर करें। बेशक। लोगों को चाहने वाले मुयस्सर नहीं आते, और अगर आपको कोई मिल ही गया है तो उसकी मत ना मार दें, उसका ख्याल करें। बजाय इसके कि वो फिर आप पर तावीज़ करे, फिर तावीज़ गंडे करे हैं, फिर अपनी कर्मा अलाइनमेंट करवाता फिरे कि ये शख्स मुझे चाहिए। उसे इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत से समझाया जा सकता है। और मोहब्बत बुनियादी तौर पर अपना आप दे देने का नाम है, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी कुर्बानी दे देने का नाम है, अपनी अना को कुर्बान कर देने का नाम है। कहते हैं मोहब्बत कब पैदा होती है, जब अना अपने आप को कुर्बान कर देती है तो मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। बेशक ऐसे। यानी देना ही देना है ना। तो जब मैं किसी की गलती पर उसे माफ़ कर रहा हूँ, उसको बगैर मांगे कुछ दे रहा हूँ, फिर मसला कहाँ रह गया? कहीं पे और फिर मैं तवक्को भी नहीं कर रहा कि वो मुझे वापस दे। बिल्कुल। मोहब्बत तो ये है ना। मोहब्बत ये है कि उसमें तवक्को नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ताल्लुक में तवक्को होती है, मोहब्बत में तवक्को नहीं होती। और अगर मोहब्बत पर मबनी ताल्लुक होगा तो चीज़ें आसान हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप तो कह रहे थे कि आपके पास कंटेंट नहीं है, और मैंने आपको कहा था कि सर कंटेंट निकलेगा और बहुत मज़ेदार कंटेंट निकला। दोनों टॉपिक पे जो हमने डिस्कशन की, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन। बातें अब ये वाला जो टॉपिक है ना, वो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि इसके ऊपर तो हम मल्टीपल सेशंस भी करें तो शायद कम होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा अनटैप्ड टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हुए कतराते भी हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर खुल के बात भी नहीं करना चाहते। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि जो आगे डायरेक्शन है ना, प्रॉब्लम ये आ रही कि हम वेस्ट को कॉपी तो करते हैं लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस कुछ और हैं सर। ठीक है, कल मैं एक बड़ी वीडियो मेरे सामने से प्यारी गुजरी, उन्होंने कहा जी हम वेस्ट की औरत को देख के यहाँ की औरत के ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं चीज़ों की, लेकिन वो ये देखिए कि हमारी औरत कितने % औरत है हमारी जो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखती है, वहाँ रखा जाता है। मैंने डाइट का ख्याल कितने लोग रखा है, इधर तो शादी हुई, आपने बड़ी मजेदार छोड़ बात दे कर खोल दी के है। चीज़ें। मैंने इस पर एक जगह एक बात कही थी, जिस औरत को आप आइडियलाइज करते हैं, जितने खर्चे आप उसके उठाते हैं ना जी, उतने खर्चे आप अपनी बीवी के उठा लीजिए, वो आइडियल हो जाएगी। बिल्कुल आप जिम ट्रेनर या जिम करने वाली लड़की और फिजिक जिसकी अच्छी होती है, जो अपने ऊपर मेहनत करती है, उसके पीछे भागते हैं, उसके खर्चे उठाते हैं, उसको शॉपिंग करवाते हैं, उसके लिए जाने क्या क्या करते हैं आप, लेकिन आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं करते और उसे आप जिम नहीं करने देते। बिल्कुल। तो फिर वो कैसे ठीक होगी? फिर कैसे उसका फिगर बहाल होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। यानी हम बाहर तो इन्वेस्ट कर रहे हैं और घर में हम खर्चा नहीं दे रहे। इन्वेस्ट ना भी करें तो रोल मॉडल वो लोग रोल मॉडल वो लोग चाहिए वो, लेकिन खुद का वो है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा नहीं है, सिर्फ सारा कुछ आता है, थॉट प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट है। तो थॉट्स की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर या फेसबुक पर आप रील देखते हैं और लड़की को देखें, यार वाह क्या बात है, और इधर बीवी को देखते हैं तो वो ढलका जिस्म, उसकी वजह वो और है, आपकी वजह और है। आपने खुद उसका ढलका जिस्म की वजह है। आप उसे जाने नहीं देते, आप उसे ख्याल नहीं करने देते, आप उसे बच्चों में उलझाए रखते हैं, आप उससे मोहब्बत नहीं करते, उसे तवज्जो नहीं देते, उसका ख्याल नहीं करते। कभी ऐसा हुआ कि हाथ पकड़ के जिम ले गए हो? क्या बात है, कभी नहीं लेकर गए, जिम लेकर ऐसे ही है। और इससे भी पहले एक चीज़ मौजूद है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक। तो अब ये देखिए ना, हमारे लिए तो रहनुमाई मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि हम आधे तीतर हैं और आधे बटेर हैं। जो बटेर हैं वो तीतर बनना चाहते हैं, जो तीतर हैं वो बटेर बनना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम थोड़े से इंसान बन जाए तो काम चल जाए। थोड़ा सा ज्यादा ना भी बने ना तो काम चल जाएगा और बेहतरी हो जाएगी। थोड़ी सी मैं कहता हूँ 2% कोशिश कर लीजिए। एक है 80-20 का रूल, 20% कोशिश कर लें, 80% नहीं। मैं कहता हूँ 2% कोशिश कर लीजिए, 98%, 98% मामला ठीक हो। और अगर इस 2% के अंदर एक चीज़ और ऐड करें, खलूसियत नियत। हाँ नहीं, सर, वो तो क्या बात है, फिर वही है ना। देखें 2% ही वही है, फिर उसके रिजल्ट देखें, मैजिकल रिजल्ट। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया सफदर भाई आपसे डिस्कशन करने का। और मैं आपके लिए एक शेर, प्लीज, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, सुना था कि होते हैं, देख लिया मौजूद भी हैं। क्या बात, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और
بہت لمبا سلسلہ ہو گیا ہماری گفتگو کا. سر لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو زیادہ لمبا اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک اور نشست نہیں, ایک اور نشست کا موقع بھی چاہوں گا تاکہ سارا کچھ آج ہی نہ ہو جائے. بہت شکریہ جناب آپ کا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. لاسٹ میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا, جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, یہ کندھا ان کے لیے اسپیئر رکھیں. جب ان کو ضرورت پڑے یہ کندھا آگے کر دیا کریں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا جو رشتہ ہے اس میں اور زیادہ مضبوطی آئے گی اور آپ ان کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے. اس وقت ہمارے پاس جو معاشرے میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہوں یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, جس طرح کے مطلب ہر طرف سے کہیں نہ کہیں آپ کو بری خبر ہی سننے کو ملتی ہے. تو وہاں پہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان سے ہم اپنا تعلق بہتر کریں. کیونکہ اگر آپ کے گھر کی اگر بات کر لیں, گھر میں اگر آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے, چاہے وہ آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, گھر میں اگر سکون ہے تو باہر سکون خود بخود ہی مل جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی. میں اتنا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جو ہم نے ڈسکس کر لیا, کافی لمبی نشست ہو گئی لیکن بڑی ویلیویبل ڈسکشن ہوئی. اور یہ وہ والی ڈسکشن ہوئی جو کہ شاید ہر ینگسٹر بچے کو آج کی ضرورت ہے, چاہے وہ وائس اوور سے ریلیٹڈ ہو یا یہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہو. ان چیزوں پہ غور ضرور کیجیے گا اور اس طرح کے کانٹینٹ کو کنزیوم کرنے کی بھی تھوڑی ہمت پیدا کریں. کیونکہ اگر آپ صرف فن تفریح ہی سنتے رہیں گے تو ان چیزوں سے پہلے ہی ہم بہت دور ہیں ایز اے سوسائٹی, اور زیادہ دور ہو جائیں گے. تو اس طرح کے کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے رہیے. اگر پوڈ کاسٹ پسند آئے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.